So we do have two ways to create a material. As I told you, we have a path in SAP Easy Access Screen to go into logistics and as well as material management, and then you have material master. So here you have create special and as well as create general. So create general, we are not creating any special material here, we are creating a general material. So mm01 is your immediate, so I can create on this and I can go directly into the screen, or you have a T code directly, which is OMS. mm01. OMS2 is for material type. It's for Okay, number okay. for material, it's only mm01. So what material we have created last time? If anybody can remember. Paint. Wood and raw material. One material I guess we created, that is tires, right? Tires I guess we created. If you haven't remember, you can directly go into mm60. What is the transaction mm60? mm60 is like list of materials. Listing the materials. What are the materials you have created? That those lists you can see in mm60. You can see based on the plant, you can see based on the materials. So it's loading. Let's see. We created a material like 4000000, I guess. So that's for tires. Let's see. We can see that here. Here we can see the created material. Yeah. MM60. Whatever the materials you have created, all the list mm60 is like a material list transaction. Whatever the materials you have created, those lists you can see here. It's still loading. डेट देके एग्जीक्यूट करना था। हाँ, डेट का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, लोड हो रहा फिर भी देखेंगे। कभी कभी डेटा ज्यादा भी है या नहीं तो बैकग्राउंड में कुछ ये पूरा डेटा एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट की one second.
Okay. I'm gonna zoom screen. Maybe for 1 second. Okay, sure. Yes. ये देखो हमारे पास जो है yes. So now you can see list of materials here. So we do have several list of materials here which was already given by SAP, but you want to see in your particular plant. Now we have our plant. What is the plant name? What plant we have created in SAP? It's a TAH1, right? So okay. So now I wanted to see the material list, whatever the materials I have created. So I have given a plant here and I'm executing now. So I can see how many materials I have created. This is the one which I've created for the test material, and this is the one which we have created in the last 40000. So this is the one. So the plant is TAH1. Material description is tires we have given. Material type TF40 we have used. Material group this we have given. So it's in unit and purchasing group and everything, violation class, everything you can see here. Okay. So this is your material, right? So now I wanted to create another material. So I'll go back again. Now I'll create a material. So it's again MM01. So what material you want me to create now? What industry sector? So paint you can use, or again any spare OH. parts. What do you want to create now? CRT. What material types we have created is Finished good we have created. yeah, any finished good And raw we'll use now. material we have created. TF40 we have already used, right? Yes, So we have used. do you have any other Go material to type the which you have created? FERT, a finished product. Both are same. No, this we have already used. Yeah, the both are same. Yes, yes. But another material type we have created, right? Yeah, it's If you can remember, what is that one? It's a raw material. Raw And material rubber, also we have and created, rubber tire and spare tire. parts. So what Yes. I'll do is like we will create a raw material or a spare part we'll create, right? So I'll go for the spare part now. Okay. So what are the mandatory views we needed? Basic data 1. Basic Purchasing. data 1, 2, purchasing, accounting. Then general plant data and storage General data, accounting. Yes. Okay. So I'll click on enter. What is the plant? It's again TH01. TAH1 is our plant and storage location is SLH1. Is it right? Now I'm clicking enter now. Okay. So what are the mandatory fields which we have to give in basic data 1 always? Remember, one is the basic unit of measure, second is your material group. What is the base unit of measure? Actually, what you want to buy now? It's a spare parts, right? You said. So what kind of spare part you wanted to buy? What spare parts would be needed for a car? Gear. Paint have gearbox. Okay. Tires. Seat. Tires we have already created. Seat covers or seat. Okay. So suppose we can take like, yeah, seat cover I'll take, okay. Or, all the leather, yeah, seat covers, okay. Then base unit of measure. So how you'll measuring, a seat cover? It is in a cubic inch or, per Kelvin or micrometer or a meter. So In meters. meter per minute it is. So now we will see it may be in a centimeter, okay. So we will So measure in centimeters. maybe in a meter. So I wanted to search meter here. So we have only meter per minute here. Let's use centimeter now. I'll use centimeter. Okay. So material group. What material group I can use? I think we have created one material group, right? What was the material group which we have created? Anybody? Material group, if you can remember. Have we created any material group? No. Material group. No. See, for paints we have created, right? So now we are not creating a paint. So I'll choose anything here like similar to our seat covers, what it might be. Or let's see anything which can show, which can
pumps, electronics. Spare part one is not available. Leather is available there. You can select leather. Leather है क्या? Yeah. You can search it here. Okay, leather and textile. Leather and Okay, textile. I can use this. Now I'm entering now. So यहाँ पे देखो, now we enter into purchasing. In purchasing, you will always need to give purchasing group. What are the purchasing groups you have created? 2 purchasing groups, I guess we created, right? So it's. What are the purchasing groups we created? So to 3 purchasing groups we have HY1, HY2, and HY3, right? So one is for raw material, second is for finished goods, and third is office supply. So I'll again, the spare parts I can call it as a finished good. So now I'll use that. Okay. Anything else here? No. I'll click on enter. So Can't we give purchasing group two or three at a time though? purchasing group, no, only one purchasing group we can give, because only one purchasing group will be responsible, right, to buy a material. So now, anything else that we need to give in the plant data and storage data? We can give unit of issue. If you how you wanted to issue the material, that you can give again all the units you will see here. Okay, so if you want to give them in pieces also you can give. Okay, in a cubic foot, square foot, so whatever it is. In kgs also you can give in a square meter, so I'll use square meter. Okay, anything you can give. So now, so you want the square meter conversion. If you're giving square meter, 1 square meter equals to how many centimeter, that conversion you wanted to give. So let's not use this. If we have any next. So here, now if you can see, base unit of measure was a centimeter. Now I told you what are the things which you need to highlight here. One is the valuation class, which is already taken. Okay, so what are the valuation classes which are available here? For spare parts, there is only one valuation class, which is 3040. That is automatically defined. FI people will define all these valuation classes. You know what to do. So we already copied the company code data from the existing company. So it has already taken the valuation class. Okay, price control is moving average price we have given. Okay, so we have a V, S is standard price, and V is moving average price. So this is a moving average price. Okay, so now, so per centimeter, right? You're calling per centimeter, how much it might be the moving average price, I'm giving it might be 100. Okay, so do you want to save the data? Yes. Okay, so material is created. Now what is this material? This is your seat cover, right? So now what I'll do is like I'll create another material. What material I'll create now? So again, mechanical engineering I'm choosing now. Instead of raw material we haven't chosen, right? So I'm choosing raw material now. Click on enter. Again, basic data 1, purchasing. This is any of not useful, accounting 1. Okay, so plant is your TAH1, and it is SLH1 is the storage location. I'm clicking on enter. Base unit of measure. So what you want to order is like, I wanted to order paint now. Okay, so paint I wanted to order. So I wanted to create a material called paint. Okay, so I'll call it as a primer. Okay, so okay, so I'll call it as a primer. No, any code. Primer means what code? Any code, any metal code you can give. 254 and anything, primer model, anything I can give it here. Okay, so now base unit of measure. What is the unit of measure for a paint? How you will calculate that? Liters or Liters. kgs. So liters or kgs. I'll go for the liters now. Do you have any liters here? No, I guess it should have. Let's check that. It's gone above liters. Yes, it should be at a liter, liters. Liters or liters or liters for liters of acid. Above N liter. We can use this. Okay. So what is the material group here now? What material groups you have? Again, I said 3 material groups we have created, right? If you can remember all of them, that's better, while practicing. So 3 material groups I've created. One is for raw materials, one is for finished goods, and second is for spare parts. So
What was the HY1. HY1? It is right. I can search them here. HY1 I think is purchasing group. Purchasing group, right? Yeah. So for paints, we have created a group here. That's let me check that. All paints you have created, I think. Yes. Only paints. Same. So let me search here, paint. So this is the one which you have created. Okay. So now I'm entering. So purchasing group again. Again, what purchasing groups we have again? 3 purchasing groups, like which we are discussing. HY. Yeah. See. So we do have all the 4 purchasing groups here: raw materials, finished, office, and services. So raw materials one I'm choosing here. Okay. So click on enter. Enter again. So see, so it's a liter again. So price control is a standard. For raw material, as I told you, it always is standard. So you don't have to give any moving price here, standard price. Okay. So 1 liter, 1 liter of a paint, how much it will cost? 245 to 300. Yeah. So call it as a 250 rupees. Okay. So I'm clicking on enter now. So I have created a material. So we have created number of materials now. Okay. So I wanted to see all of them here. So MM60 is my to see list of materials. Okay. So we have only one plant here. If you have multiple plants here, remember that plant to this plant, multiple plants you can give here. Okay. So now I can execute here. So whatever the materials I've created, I can see here. Seat cover we have created, tires we have created, paint we have created. Okay. Okay. And one other one is the test material. So now we got all of them. Okay. Now I'll go back. So this is like, creation of a material. So let me close this and let me go to another topic called vendor master data. So that is the topic, material master data, where the major things which you have to remember from the material master data is, first you need to create a material type, and as well as then what you need to do, then you need to create some number ranges. That number ranges should be assigned to a material type, and after the assignment, you have to create a material group if it is required. If you don't require, if you want to use standard material group, that's fine. Then directly you can create a material by using MM01 or using the path. That was your material master. A vendor master is always similar to the material master only. Same things, will be repeated here. So let me go to the vendor master topic. So before going to the vendor master, what is actually a vendor? Vendor actually a business partner, right? For whom you'll purchase some materials or services. Okay. So and you'll pay to him. You'll pay to the vendor, whatever the services or whatever the goods he'll provide. So a vendor master. So what vendor master contains? It contains the complete data of the vendor to whom the company conducts business with. So what kind of business it is? It can be a sales or it can be a purchase. Okay. So this is the enterprise main source of vendor specific data. This data will include information on vendors from which a company can procure or it can sell. It's not like, vendor is not something, which we can only like procure, right? It can be a a vendor, in business partner, you have 2 things, like one is a customer, one is a vendor. So customer is a business partner, where you'll sell your goods, and vendor is a business partner, where you'll procure the goods. Okay. So vendor master record will contain information like vendor's name, address, all these things. So let's say, so actually in any vendor master data, you'll find 3 categories. Okay. Like in material master data, you have user departments, right? You have a basic data there, you have a storage data there, you have a accounting data over there, you have a purchasing data. So we do have 3 stages only in vendor master. One is a general data, second is accounting data, third is a purchasing data. So actually, when it comes to general data is maintained at client level always, like a basic data in material master, right? In material master, basic data will always be maintained at client level, and it will be applicable to all the levels within that client. So here also, general data of any vendor will be maintained at client level, and it is valid for all organization levels. So what are those examples? What actually a general data of a vendor contains? It contains the vendor address, vendor contact numbers, okay, and everything. So its location. So
So vendor address and vendor name, vendor number and vendor phone numbers and everything, all this comes under general data. So what accounting data contains? Accounting data will be dealt by FI people, finance people, okay. But anyhow, we will give some values, we will see the screen how this accounting data will look like. But it will be maintained by accounting people. So accounting data is maintained at company level, and it is valid for all plants belonging to that company, okay. If you are maintaining at client level, means it will be applicable to all the company codes, all the plants and all the store locations, right? So if I'm maintaining anything at company level, means it can't be applicable to client. It will be applicable to below to that company, whatever the levels were there. It may be plant, it may be a store location. It will be applicable to those levels. So to maintain accounting data, use transaction FK01. Okay. Who will use this FK01 transaction? FI people. FI people, if they wanted to create a vendor with a supplier whom they wanted to maintain any accounting data only, then they will use FK01. Okay. If they wanted to change, then they will use FK02. If they want to display, it will go to FK03. Purchasing data. But as a consultant, we wanted to maintain the purchasing related data of a vendor. So I can maintain that. So how can I maintain? I can have a transaction called MK01 to create, MK02 to change, MK03 for display. But if you want to create a vendor centrally, means it should be common for accounting level as well as purchasing level and everything. So you will use XK01. So all the time, we will use SK01 transaction only, because whatever the material we are creating, we want that to accounting view also, purchasing view also. Without accounting view, I can't buy or sell my material. Okay. Without purchasing view, you can't, sell or procure a material. So that's like, if accounting people will say like, I will only create FK01, so that material will be only useful to post any accounting entries, but that accounting, that supplier can't be useful to procure or sell anything. Okay. It should have a purchasing data. So if I maintain a purchasing data only, if I'm not maintaining any accounting data, means, I can, I can only, procure the materials, but I can't post any accounting entries. I can't post invoice. Even in order to post invoice, because if I'm procuring any material, means I have to post invoice, right? If I wanted to post invoice, I should have accounting data. So like this, okay. So these are the data, which you have available for vendor level. So we will always be using XK01 to create a vendor, remember. So in interview will ask you, if I wanted to create a purchasing specific vendor, if I don't want to maintain any accounting data, what will be the C code? He'll ask you. So you can say like MK01, where you won't maintain any accounting data. He'll again ask you, what will happen if I don't maintain any accounting data in a supplier? So you can reply like, yeah, if I don't want to, if I don't maintain accounting data for any supplier, for any supplier, I can't post invoice for whatever the materials I have procured or I'm selling. Okay. So that is the thing. You can ask me one question here. You're saying for accounting data FK01, for purchasing data MK01. What is the T code to create a general data? We don't be having any T code to create a general data. Why? If I use FK01 to create accounting specific vendor, it will take general data also. Without general data, purchasing data as well as account data won't be created. So if I click on FK01, it will also take general data also, because without general data, because without vendor number, vendor address, I can't create accounting data, right? So even if I don't want to use FK01, if I use MK01 also, it will again take general data. General data will be common for both the T codes, FK01 as well as MK01 as well as your XK01. We will see the transaction. I'll execute the transaction. I will show you how these three differently will work. MK01, how it will work, FK01 and SK01, I will show you. Okay. So now it's a pictorial representation of what I discussed till now, the organization levels. You can see here. It is your external business partner. Okay. This is your total enterprise. So this is your external business partner. When I'm calling external business partner, why I am calling it as an external business partner? Why can't I call it as an internal business partner? So what if it is an internal business partner? What is the difference between both of them? Can anybody explain me? Because vendor is outsider, it is not part of our organization. But with the help of vendors providing material and whatever we are buying with them, we are doing our transactions. Yeah, you're saying like external business partner means your external vendor or your customer, which is outside your entity, outside your enterprise, outside Tata. Correct. It may be Reliance. Okay. But if I call it as an internal business partner, so how things will change? Internal business partners, it will be differ. Differ means where it will be? It will be within the Tata or out of the Tata?
I'm not sure within the Tata. Yes, Yes, sir. because the name itself says internal group, internal vendor means within the Tata group. As I told you, within the Tata group, what might happen is like, so I'm running a Tata, Tata Aviation Group is there, okay. Now they are creating Tata jet, jet planes and everything. So they need some, aluminum and the steel materials, where they can buy Tata Steel. So they can create a vendor called Tata Steel. Okay, Tata is only their group only. It is internal only. They can create a vendor called Tata Steel, and that will be their internal vendor only. Okay. So when it comes to when you're creating that Tata Steel vendor, you will call it as a, you'll be having called, you can choose it as an external vendor or the internal vendor. You'll call it as a internal vendor because that is your inside of your organization. So this might, I can do procurement, within the organization also. Sometimes, whatever the materials are required, that can be available within my client only, but maybe different company code. It's not under Tata Motors. We are discussing only about Tata Motors now. So Tata Motors needs some, iron materials. I wanted to create a Tata Motors, car body. For car body, I want a iron material. It may be cast iron, it may be mild steel. Okay, what it may be aluminum. But that can be supplied. I can buy it from outside in the external vendor. I can buy it from inside with any other company, inside this Tata group only. Inside the Tata group company, we have a Tata Steel. So where I can create the Tata Steel as one vendor also. I can call it as an internal vendor. So it might happen. Okay. So very least scenario, it may happen. So now external business vendor. So I have, as I told you, the basic data will always, stores at client level. Accounting data will always stays at company code level, and purchasing data will always stores at plant level. Okay. So accounting data, this company code won't be having this purchasing data. If I can create FK01 means I can only create up to this level. Up to this level means it will be having a basic data as well as accounting data. Okay. If I create MK01, it will be having this purchasing data and as well as this basic data. Okay. So 3 levels are there. The levels which I discussed just now, general and accounting and purchasing data. So this is the first line indicates your general data. Okay, which stays at client level. The second line indicates your accounting data, which stays at company code level. And the third row indicates your purchasing data, which stays at plant level. Okay. Now, after that, you should understand some types of vendors will be there. This is not much important, but you should know how many types of vendors will be there. As I told you, internal vendor supplying by another company code under the same client. That's now we discussed, right? What is the internal vendor? Internal vendor means it will it is a company, it is supplied by a company code or any plant within the client, but another company code. Like I said, we have created one company code only, right? If I go back to this thing called our client, client is 800, right? So my client was client is our 800. Okay, take this 800 practice client as a Tata client. Under this Tata client, I have Tata company name Tata G1. Okay, company code is your Tata Motors. Okay, I can have another, this is your Tata Motors. Okay, I can have another company code like Tata Steel. Okay, I can have another figure called TS01. I can create this also company code. So a client may have a different company code. It is not like, we should maintain only one company code. This is for the practice. So that is why we are only maintaining one company code. So we shouldn't get confused. Internal vendor means what? If you are buying any materials, within your organization means client. Remember, I'm not saying it as purchase organization. Within the organization, then that will be internal vendors. External vendors means beyond your organization, out of your organization, a company or a person who supplies material from outside. Okay. So now regular vendor. This is always, common vendors when you maintain. I have maintained Asian Paints. If I want to create a paint, Asian Paint supplier, that's a regular vendor. Regularly, I wanted to buy paints. If you wanted to create MRF types, MRF as a supplier. MRF is a regular supplier. MRF should supply me tires every time. So I can call it as a regular supplier. Okay. Then a vendor supplies material at the client level. He supplies to an entire corporate group. So that MRF, if I have an agreement with that MRF group, means MRF will supply this material to all the, plants. Okay. Within that client or the group. Then fixed vendors. As I told you, in a source list, we will fix a vendor, right? I can directly create, a fixed vendor also. What is this fixed vendor will do?
Fixed vendor will procure some certain materials. I can fix them, like, one vendor I can create. I can fix that to buy my tires. I wanted to buy tires from only MRF. I don't want to, I don't want to buy it from SEAT. I don't want to buy it from any other vendor. So it's a fixed vendor. Then one-time vendors you will be having. One-time vendors means what? If you don't want to buy, there is a vendor, where you won't procure anything. It's a one-time vendor. Like, I wanted to, construct one storage location. I'm having one storage location already, but that space is not enough for me. I'm constructing another storage location beside to this one. To construct my storage location, again, what I'm doing is like, I'm choosing an L&T group as a supplier, that L&T will come here and will construct the storage location, or any local vendor, local construction, any MVR construction, any TVR construction, any local, local constructor, contractor will call, and I will tell him to construct this building. Okay, he'll construct. I'm not doing this construction, every day, every time. One time only I'll calling them a tender, and those construction will be coming, and that will be, they'll construct this storage location. I won't be doing regularly, right? One time. Later, after 10 years or 15 years, I may need any storage location. That time I can create any vendor. That time this constructor may not, this contractor may not be available, right? So I don't need to maintain him as a regular vendor. I can only maintain it as a one-time vendor. One time only I will be taking any supply, any services from him. I'm not expecting any services, beyond this one time. Okay, that is what, if you can remember this. Now, vendor master characteristics. In material, what are the characteristics of a material? We have a material type and number ranges. Two things there you have, right? So in vendor master, again, like there you have material type, right? Similarly, here we have a material vendor account group, and there we have number range, right? Here also you have number range. So what are these two? We will see how we can create a vendor account group. Before creating a vendor, हम लोग को वेंडर बनाना है भाई XK01 ट्रांजैक्शन यूज करके. वहां पे भी मटेरियल बनाए थे हम लोग MM01 यूज करके. सो MM01 मटेरियल बनाने से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे मटेरियल टाइप को क्रिएट करें, मटेरियल नंबर्स को क्रिएट करें, नंबर रेंजेस को. तो यहाँ पे भी आपको वेंडर बनाने से पहले वेंडर अकाउंट ग्रुप को आपको डिफाइन करना पड़ता है, एंड एज वेल एज वेंडर का नंबर रेंज भी देना पड़ता है आपको. So now I'm going to create a vendor account group and see what is actually a vendor account group and why I have to create this. The vendor account group plays an important role in vendor master data because it has many controlling functions. So what are them? We will see them. It's used to categorize vendors. Vendor account group को यूज करके क्या करते हैं हम लोग, कैटेगराइज करते हैं. कैसे कैटेगराइज करते हैं? वेंडर सिमिलर इन नेचर, वेंडर जिसका नेचर सिमिलर रहता है, ग्रुप टुगेदर सच एज वन टाइम वेंडर. पूरे वन टाइम वेंडर्स को एक ग्रुप बना सकता हूं मैं. ओके, लाइक समझो कंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर को मैं एक वन टाइम वेंडर बोल के बना दिया. ओके, और मेरे पास इलेक्ट्रिक वर्क करना था मेरे को बिल्डिंग के अंदर. इलेक्ट्रिक वर्क भी मैं बार बार नहीं लेता हूँ, वो वर्क एक बार ले लेता हूँ एक सर्विस से. एक बड़ी जो है इलेक्ट्रिक की कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर है उसको बुला के पूरी बिल्डिंग की वायरिंग करना है मेरे को. इट कैन आल्सो वन टाइम सप्लायर. तो ये पूरे वन टाइम सप्लायर्स को पूरों को मिला के आई कैन एक वेंडर अकाउंट ग्रुप बना सकता हूँ मैं. उसमें क्या रखता हूँ वहाँ पे बोले तो वन टाइम सप्लायर्स बोल के बनाता हूँ. उसके अंदर पूरे जो वन टाइम वेंडर्स रहते हैं उसके अंदर लग रहते हैं. डोमेस्टिक वेंडर रहता है, फॉरेन वेंडर रहता. फॉरेन वेंडर्स कई को देखो, यहाँ पे इंडिया के अंदर जो भी चीजें हम लोग यूटिलाइज करते, हर चीज हम लोकल से नहीं बनाते. बहुत सारी चीजें बाहर से आते हैं. लाइक इफ आई वांटेड टू मैन्युफैक्चर ए मोबाइल, अगर इंडिया के अंदर मेरे को मोबाइल असेंबली करना है या मैन्युफैक्चर करना है, सो उसको चिप की जरूरत है. चिप कहाँ से बनता है? चिप अगेन चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है मेरे को. उसका बोर्ड मेरे को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है. उसका LCD डिस्प्ले या LED पैनल चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता. सो मेरे पास कुछ फॉरेन वेंडर्स भी रहते, कुछ लोकल डोमेस्टिक वेंडर्स भी रहते. सो आई कैन कॉल ऑल ऑफ द डोमेस्टिक वेंडर्स इनटू ये वन अकाउंट ग्रुप. फॉरेन वेंडर्स को पूरों को एक अकाउंट ग्रुप में रख सकता हूँ मैं. कैन कॉल इट एज ओके ओवरसीज वेंडर. फॉरेन वेंडर्स या ओवरसीज वेंडर आई कैन कॉल इट एज. और एम्प्लॉई वेंडर्स, एम्प्लॉय से आपको एम्प्लॉयज के ग्रुप को मैं एम्प्लॉय वेंडर बोल के बोल सकता हूँ. तुम्हारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज है भाई, एम्प्लॉयज को पूरों को मैं क्या कर सकता हूँ, उन एम्प्लॉयज को जब क्रिएट करता हूँ ना, पूरे एम्प्लॉयज को एक अकाउंट ग्रुप असाइन करता हूँ. वो मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय वेंडर बोल के बोलता हूँ. एम्प्लॉय वेंडर बोलते क्या है, ये पूरे वो ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉयज को मैं क्रिएट करता हूँ ये पूरे एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर आते हैं. तो उन लोगों का अकाउंटिंग अलग होता और उन लोगों का जो है बैलेंस शीट अलग होता, उनका जनरल लेजर अलग होता था ऐसा. सो डिपेंड्स ऑन दिस. नो सो इसको हाइड करेंगे भाई, नहीं डिस्टर्ब कर रहा आपने को. ओके, नाउ द वेंडर अकाउंट ग्रुप डिटरमाइंस the intervals for the account numbers whether it is one time. intervals क्या क्या है वो intervals मैं दिखाता हूँ. नंबर इंटरवल कैसे मेंटेन करते. एक वेंडर अकाउंट ग्रुप क्या क्या डिटरमाइन करता है बोले तो पहली चीज क्या है, उन्हें
इंटरवल्स को मेंटेन करता है। इंटरवल्स बोले तो क्या है, अकबर One भाई time- सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यप ये एम्प्लॉय वेंडर वेंडर क्या है? एम्प्लॉय से अपन क्या खरीदते? एम्प्लॉय से क्या भी नहीं खरीदते भाई, एम्प्लॉयज को जो है अपन पेमेंट्स करना पड़ता ना। एम्प्लॉय से तुम सर्विस क्या लेते हैं, एम्प्लॉय तुम्हारे लिए काम करता तुम्हारी कंपनी में 30 डेज काम करता, कोई 28 डेज काम करता, कोई कोई 15 दिन काम करता, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट पर्सन रहते जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टिंग ले लेते तुम। तो ऐसे एम्प्लॉयज को पूरा क्या करते तुम, इसमें बनाते, एक ट्रांजेक्शन यूज करके इसमें बनाते, उन लोगों को एक अकाउंट ग्रुप ऐसे कर देते आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मैं उसको कुछ भी अकाउंट ग्रुप नहीं बनाया तो कौन सप्लायर है कौन मेरा एम्प्लॉय है मेरे को समझ में नहीं आता, समझ रहे ना। असलम खान बल्कि मैं बना लिया, एक एम्प्लॉय को बना लिया, और एक बाहर से मेरे को एक पेन सप्लाई करने वाला एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका नाम भी असलम खान है, असलम खान एंड को है उसका नाम, असलम खान बोल के लगा लिया। तो मैं कंफ्यूज रहा भाई कौन असलम खान कौन है, इन्हें को हमारा एम्प्लॉय कौन है इसके अंदर, उन्हें वेंडर कौन है। सो मेरे को डिटेल्स में जाके बार बार देखना पड़ता है, असलम खान के डिटेल्स में जाके देखना पड़ता है, उसका एड्रेस वगैरह सब देखे तो वह मालूम हो रहा है कि भाई इन्हें कि वो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये असलम खान मेरा एम्प्लॉय है। तो इन लोगों को ग्रुप करने के वास्ते, आइडेंटिफाई करने के वास्ते मैं क्या करता हूँ, ये असलम खान जो क्रिएट करा मैं इसको अकाउंट ग्रुप एम्प्लॉय वेंडर पे असाइन करता हूँ। सो अकाउंट ग्रुप को देख के हमेशा मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि भाई अच्छा तो इन्हें हमारा एम्प्लॉय है, और अकाउंट ग्रुप वन टाइम सप्लायर बोल के है या नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर बोल के है तो समझता हूँ कि अरे भाई इन्हें हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है असलम खान। सो लाइक दिस, ओके। सो एक अकाउंट ग्रुप क्या क्या डिटरमाइन करता है भाई, जरूरत क्या है इसकी, जरूरत हम समझ गए तो क्या क्या डिटरमाइन कर सकता है उसके, ये रूल्स क्या क्या रह सकते हैं इसके। एक तो चीज है इंटरवल्स, इंटरवल्स बोलो तो क्या है, मैं हर वेंडर अकाउंट ग्रुप को एक नंबर इंटरवल दे सकता हूँ। जैसा हम लोग क्या करें वहां पे हर मटेरियल टाइप के एक नंबर रेंज दिए थे, याद है आप लोगों को। वन मटेरियल टाइप व्हाट ए मटेरियल टाइप विल कंट्रोल्स मींस नंबर रेंज इंटरवल को कंट्रोल करता है वहां पे, ओके। यूजर डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है वहां पे, और एक्सटर्नल इंटरनल वर्सेस प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल करता आप लोग जब मटेरियल टाइप बनाते। तो ऐसे चाहिए यहाँ पे वेंडर अकाउंट ग्रुप क्या करता, नंबर इंटरवल्स को भी कंट्रोल करता है, एंड एज वेल एज वेदर इट इज ए वन टाइम अकाउंट, एक वन टाइम वेंडर है या नहीं है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं अपन। मैं बता दूं अकाउंट ग्रुप बना दिया कैसे चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद विच फील्ड्स आर रेडी फॉर इनपुट और मस्ट बी फिल्ड इन द मटेरियल मास्टर। इसके अंदर क्या है, अपन फील्ड्स को कुछ मैंडेटरी कर सकते हैं, कुछ ऑप्शनल कर सकते हैं, दैट आल्सो आई विल शो यू वेदर द नंबर रेंज इज असाइन्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। और जो नंबर रेंजेस आप दे रहे हैं वो इंटरनल है एक्सटर्नल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नंबर रेंज एस्टिमेट, कोई बोल सकते हैं यहाँ पे। एक एक्सटर्नल नंबर रेंज एस्टिमेट बोले तो क्या है, इंटरनल बोले तो क्या है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। व्हाट इज योर आंसर अशफाक असलम आप लोग। इंटरनल नंबर वो नंबर है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली देता है, वो एक्सटर्नल नंबर है हाँ जो हम असाइन करते हैं ना, वो नंबर आप जो नंबर रेंज सेलेक्ट करते हैं ना हाँ, वो नंबर है। जो नंबर रेंज देने के बाद ही मैं बाजू एक्सटर्नल बोल के क्लिक करता हूँ, उसका मतलब क्या है बोलो। एक्सटर्नल वेंडर्स भी हम लोग एक्सेप्ट करना बोलते हैं। एक्सटर्नली भी कुछ भी मेरा ओन नंबर दे दिया मैं वहां को, कुछ भी नाम दे दिया तो उन्हें एक्सेप्ट करना। अगर नंबर रेंज में 00 से लेके ZZZ तक 100 1 लाख से लेके ZZZ बोल के दे दिया मैं, मतलब अल्फा में दे दिया ZZ बोल के, तो यहाँ पे मैं वेंडर के पास नाम भी लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं असलम खान एंड को, ओके, अशफाक एंड को बोल के नाम भी लिख सकता हूँ मैं वेंडर के नाम के पास। खाली नंबर रेंजेस देना है मेरे को, वो भी कंपनी जो डिफाइन करी उसके अंदर देना है, वो तो इंटरनल नंबर रेंज असाइनमेंट देता हूँ यहाँ पे, ओके। So the important point here is an account group must be assigned to each vendor master record. हर वेंडर अकाउंट ग्रुप को जो भी वेंडर बनाते हैं आप, विदाउट अकाउंट ग्रुप आप एक वेंडर को नहीं बना सकते। जैसा हम मटेरियल में क्या कर रहे थे याद है आप लोगों को, बगैर मटेरियल टाइप के हम लोग मटेरियल को नहीं बनाते। तो सिमिलरली या जो कुछ भी नहीं है भाई सेम सिमिलर है। आप मटेरियल में क्या है मटेरियल टाइप बोलता हूँ मैं, वेंडर में वेंडर अकाउंट ग्रुप बोलता हूँ, डिफरेंस वही सिमिलर है, ओके। सो जैसा हमको एक मटेरियल टाइप के बगैर क्रिएट नहीं कर सकते, similarly we can't create a vendor without a vendor account group, that you have to remember. So interviewer will ask you, can you create a vendor without vendor account group? You can say no, it's not possible, okay. Vendor account groups, so देखिए वेंडर अकाउंट ग्रुप्स, देखो यहाँ पे स्क्रीन ऐसा रहता भाई, XK01 बोल के मैं मार दिया समझो, टिक कोड ऐसा आता, वेंडर आता, कंपनी कोड आता, परचेज ऑर्गेनाइजेशन आता, अकाउंट ग्रुप आता। देखिए वेंडर बोले तो क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सटर्नली या उन्हें इंटरनली ले लेता नंबर वेंडर का। कंपनी कोड आपको मालूम है अपन जो बनाए TIN1 कुछ है शायद ना, सो दैट इज योर कंपनी कोड। परचेज ऑर्गेनाइजेशन देते हैं यहाँ पे, देन यू विल गिव अकाउंट ग्रुप। देखिए विदाउट अकाउंट ग्रुप अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो नहीं बनाने देता उन्हें। अच्छा अकाउंट ग्रुप को मैं ड्रॉप डाउन क्लिक करा तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट ग्रुप बने हुए हैं। देखो एक तो 0001 बन के वेंडर, 002 बन के गुड सप्लायर, 003 है ऑलरेडी पे, इनवॉइसिंग पार्टी, फॉरवर्डिंग एजेंट, ऑर्डरिंग एड्रेस, प्लान्स, ये सब जब क्रिएट करके है, ओके। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पे एक चीज मैं क्लियरली बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग नहीं पूछे सवाल कि भाई यहाँ पे वेंडर बोल रहे हैं, गुड सप्लायर बोल रहे हैं, ऑल्टरनेट पेई बोल रहे हैं, इनवाइसिंग पार्टी बोल रहे हैं, ये चार चीजें क्या हो सकते हैं, ये चार अलग अलग क्यों है। एसएपी के अंदर पार्टनर फंक्शंस बोल के एक टॉपिक रहता, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे बाद में मेरे को पार्टनर फंक्शन क्या है नहीं बोले बोल के। सो आई विल डू दिस हियर, लेट मी डू दिस। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर विल आस्क यू व्हाट आर द पार्टनर फंक्शंस एंड उसका यूज क्या है। पार्टनर फंक्शन आपका जो है ये एक हो सकता है आपका ऑर्डरिंग पार्टी, दूसरा हो सकता है आपका गुड सप्लायर, इनवॉइसिंग पार्टी, ओके, डिलीवरी पार्टनर पार्टी। क्या है भाई ये पार्टनर फंक्शन, मैं जैसे लिखा आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हो सकता है ये पार्टनर फंक्शन। भाई तो चले जाओ, ओके। सो नाउ इफ यू कैन सी हियर व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, ओके। सो नाउ यहाँ पे देखो पार्टनर फंक्शन बोल के बोल रहा हूँ मैं, पार्टनर फंक्शंस कहाँ थे, एक वेंडर बनाते तो लास्ट में आता, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसको याद रखिए पार्टनर फंक्शन बोल के पूछ चलना क्या क्या हो सकता है। पार्टनर फंक्शंस का यूसेज क्या है, दैट आई एक्सप्लेन। ये पार्टनर फंक्शन क्या है, कभी कभी क्या होता आपका वेंडर जो है, समझो कि मैं टायर्स खरीद रहा हूँ एक वेंडर के पास से, वो वेंडर के जो टायर्स खरीद रहा हूँ मैं एक वेंडर बनाता हूँ कि एमआरएफ टायर्स बोल के एक जो है एमआरएफ टायर्स का जो भी सप्लायर हैदराबाद में है, उसका समझो कि एलबी नगर में या नहीं तो अमीरपेट के सेंटर में उसकी अगर हेड ऑफिस है, तो एमआरएफ टायर्स के नाम से जो है मैं क्या करता हूँ एक वेंडर बना देता हूँ, ठीक है। उन्हें मेरा ऑर्डरिंग पार्टी होता है हमेशा, मेरे को जब भी टायर्स ऑर्डर करना है मैं उसका नंबर मार के, सप्लायर का नंबर कौन सा हेड ऑफिस जो थी उसका नंबर मार के ऑर्डर करता हूँ। मगर क्या होता हेड ऑफिस रहती है वो खाली, वहां पे सप्लाई नहीं कर सकता उन्हें, सप्लाई करने का और एक है वो एलबी नगर में है या नहीं तो जो है तुम्हारा लिंगमपल्ली में है या गच्चीबौली में है, उसका एक ऑफिस है वहां पे, उसका एक एड्रेस अलग है। तो मैं क्या करता हूँ बोले सा और एक जो है वेंडर को बना लेता हूँ सेम वही क्या बोलते हैं एमआरएफ टायर्स का, उसको गुड सप्लायर में बोलता हूँ, क्योंकि ऑर्डर मैं इसको नहीं कर सकता, ऑर्डर में हेड ऑफिस को भेज सकता हूँ, हेड ऑफिस वाला ऑर्डर प्रोसेस करता, फिर गुड सप्लाई कौन करता, इन्हें करता यहाँ वाला, इसको फिर अलग पीओ भेजने की जरूरत नहीं है, आप एक बार हेड ऑफिस को पीओ भेज देते। मगर हेड ऑफिस वाला क्या करता, हेड ऑफिस वाला आपको गुड्स नहीं भेजता, गुड्स कौन भेजता है बोलते गुड सप्लायर, जहाँ वाला गच्चीबौली में जो प्लांट है या स्टोरेज लोकेशन है तुम्हारा, वेयर हाउस है या वेयर यार्ड है, उन्हें भेजता। भेजने के बाद क्या होता, अब तुम इनवॉइस इनवॉइस देना रहता या तुम पैसे पे करना रहता, किसको पे करते, ये डिलीवरी जो करा इसको पे कर सकता हूँ मैं, या ना तो जो जिसको मैं पीओ रेस करा उसको पे कर सकता हूँ, नहीं तो इनवॉइसिंग पार्टी अलग भी हो सकती है जो दिल्ली में बैठी हुई है और एक हेड ऑफिस है, उन लोगों को पेमेंट्स करना मैं, क्योंकि अकाउंट्स का मैनेजर कोई अलग हो सकता, या सेल्स का मैनेजर जहाँ बैठा हुआ है तुम्हारा अमीरपेट में, उसको सेल्स मैनेजर को मैं नहीं पे करता हूँ। अकाउंट्स मैनेजर मेरे को हैदराबाद में नहीं है, वो ना दिल्ली में या मुंबई में बैठ के है, वहाँ के प्लांट में बैठे हुए हैं, तो वहाँ के जो हेड ऑफिस में बैठे हुआ है। इनवॉइसिंग पार्टी में क्या करता हूँ, वहाँ का जो एड्रेस डाल के जो है वहाँ के डिटेल्स पुश करके, वहाँ का जो अकाउंट्स का मैनेजर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे देके उसका डिटेल्स देके पेमेंट्स में वो इनवॉइसिंग पार्टी कर लेता हूँ। ये सब एमआरएफ के ब्रांचेस ही है, मगर क्या है मैं एक को ऑर्डर करना पड़ रहा है, एक सप्लाई कर रहा है, एक को मैं पे कर रहा हूँ। डिलीवरी क्या कर रहा है, ये तीनों भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आखिरी को डिलीवरी क्या कर रहा है, कोई ब्लू डार्ट वाला नहीं तो कोई जो लोकल में लॉजिस्टिक्स वाला आके डिलीवर कर रहा, समझ रहे हैं आप। तो अगर एक वेंडर को पार्टनर फंक्शन मेंटेन करना है तो ऐसे चार टाइप कितने ही पार्टनर फंक्शन मेंटेन कर सकते हैं आप, एक से ऑर्डर कर सकते हैं, और एक गुड सप्लाई कर सकते हैं आपको, और एक इनवॉइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक से और कोई थर्ड वाला आके, थर्ड पार्टी वाला आके डिलीवरी भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसको आप ऑर्डर करें उन्हें से आपको जो है गुड्स भी सप्लाई करे, उन्हें से आपको इनवॉइस प्रेजेंट करे, उन्हें से आपको डिलीवरी दे, ऐसा नहीं हो सकता कभी कभी। अब बोलिए। ये ऑर्डर पार्टी को ऑर्डर रिसीविंग पार्टी नहीं बोल सकते, कंफ्यूज हो रहा हो। कई को ऑर्डर रिसीविंग पार्टी, मतलब ऑर्डरिंग पार्टी तो हम होते हैं ना, जो वो ऑर्डर कर रहा, वो ऑर्डर जो वेंडर को। मैं खाली लिखा भाई वहां पे, तुम कुछ भी लिख लो, मैं खाली तुम्हें समझाने के लिए लिखा। ओके ओके। इट कैन बी एनीवन। यहाँ पे देखो मैं लिखा, यहाँ पे इनवॉइसिंग पार्टी लिखा, गुड सप्लाई लिखा, अल्टरनेटिव पे लिखा, कुछ भी लिखा, ऑर्डरिंग एड्रेस बोल के लिखा था यहाँ पे, मैं ऑर्डरिंग पार्टी बोल के बोला, तुम कुछ भी कर सकते। ओके सो नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सो ऑलरेडी इतने सारे वेंडर अकाउंट ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके सो नेक्स्ट इज, अब देखिए इंपॉर्टेंट वेंडर ग्रुप्स आर, सो ऑलरेडी ऐसे भी कुछ क्रिएट करके रखा, ये अकाउंट ग्रुप्स है, आपको याद रखे तो भी चलता, नहीं याद रखे तो भी वेंडर जब बना रहे हैं आपको देख ले सकते। पहला वाला है वेंडर है, वो स्टैंडर्ड है 0001 ऑलवेज, गुड सप्लायर हमेशा रहता 0002, अल्टरनेट पेई
पेएबल तो गुड सप्लायर कुछ पे नहीं करते तुम, दूसरा पे करने वाला अलग रहता, इसको पे करना रहता वो चूज कर लेते। इनवॉइस प्रेजेंटेड बाय फॉरवर्डिंग एजेंट, प्लान्स रहते, एक्सटर्नल वेंडर LIEF बोल के रहता, या मैन्युफैक्चरर MFNR। तो ये कुछ अकाउंट ग्रुप्स है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसको तुम यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट वाला क्या है, CPD है। CPD बोल तो क्या है, अगर मैं अकाउंट ग्रुप, देखो यहाँ पे वेंडर जब बनाता हूँ, यहाँ पे अकाउंट ग्रुप के पास अगर मैं CPD बोल के चूज कर लिया तो उन्हें वन टाइम वेंडर हो जाता। खाली अगर LIEF बोल के यूज कर लिया यहाँ पे तो उन्हें एक्सटर्नल वेंडर हो जाता। सो दैट माइट हैव ओके, दीज आर द स्टैंडर्ड अकाउंट ग्रुप्स व्हिच आर अवेलेबल इन SAP। ये आपको प्रैक्टिस क्लाइंट में भी रहते हैं और रियल टाइम में भी रहते हैं। उसके बाद अब क्या करना है, हमारे को वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना है। चलो आप समझ गए हम वेंडर अकाउंट ग्रुप क्या है, उन्हें क्या करता है, उसके attributes क्या है, that we have seen. So now I need to create a vendor account group. So now again you need to remember this part: IMG, logistics general, business partner, vendors, control, define account group and field selection vendor. If you don't want to remember this total path, you can directly remember this T code OBD3. ये वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाने के लिए मटेरियल में मटेरियल अकाउंट ग्रुप नहीं था, वहां पे मटेरियल टाइप था, उसका टी कोड क्या था भाई, व्हाट वाज द टी कोड, OMS2। उसका पाथ क्या था भाई, अगेन लॉजिस्टिक्स जनरल, उसमें भी वहां पे था मटेरियल मास्टर। ओके, सो वहां पे आप जाके क्या करें, मटेरियल क्रिएट करें, डिफरेंट एट्रिब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स बोल के, OMS2 था वहां पे। देन सिमिलरली यहाँ पे भी अकाउंट ग्रुप के अंदर OBD3 है। देन उसके बाद क्या है, मैं अभी क्रिएट करके बताता हूँ, पहले आप जो है ये PPT देखो, उसके बाद हम वेंडर अकाउंट ग्रुप भी बनाएंगे, नंबरेज भी बनाएंगे, वेंडर भी बना के देखेंगे। देन वी विल क्लोज द क्लास। 8:27 ऑलरेडी हो गए, सो क्विकली वी विल सी दिस वेंडर अकाउंट ग्रुप OBD3। ओके, उसके बाद नंबर रेंजेस, सेम मटेरियल मास्टर में जैसा नंबर रेंज दिए थे वैसे नंबर रेंज देना। यहाँ पे और थोड़ा सिंपल रहता है, वहाँ पे आपने क्या था भाई, पहले ग्रुप बनाओ, उसके बाद ग्रुप बनने के बाद नंबर रेंजेस को बनाओ। वो नंबर रेंजेस जो बनाए विद इन ग्रुप में, वो ग्रुप को हमारे मटेरियल टाइप से असाइन करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी उतना चाहिए, नंबर रेंज बनाना, असाइन करना, वो सिंपल रहता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, इसका पाथ क्या है भाई, अगेन सेम पाथ है, लॉजिस्टिक्स जनरल, बिजनेस पार्टनर, वेंडर्स, कंट्रोल, डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, नहीं तो XDN1। दो ही टी कोड है जहाँ पे याद रखना आपको, वेंडर बनाने से पहले एक था OBD3 जो वेंडर अकाउंट ग्रुप के लिए, दूसरा XDN1। वहां पे क्या था, मटेरियल मास्टर नंबर रेंज में MMNR था, मटेरियल मास्टर नंबर रेंज टी कोड, यहाँ पे XDN1 है। ओके, तीन टी कोड याद रखना पड़ता है, वेंडर आ गया बोले तो। तीन बोले तो क्या है, एक था OBD3, दूसरा था XDN1, तीसरा है आपका वेंडर क्रिएट करना बोले तो वो है आपका XK01। ये है क्रिएशन ऑफ ए वेंडर। सो वेंडर मास्टर अब क्रिएट करते हैं। वेंडर मास्टर क्या क्या रहता है, कंटेंट्स ए लिस्ट ऑफ वेंडर्स फ्रॉम व्हिच ए कंपनी कैन प्रोक्योर और इट कैन सेल। पाथ टू क्रिएट वेंडर मास्टर, SAP मेनू। SAP मेनू बोलते क्या है भाई, वो SPRO का नहीं है, IMG मेनू अलग है, SAP मेनू इजी एक्सेस मेनू अलग है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ आप लोग इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, SAP इजी एक्सेस बोल के लिखते हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आया था, इजी एक्सेस, SAP इजी एक्सेस मेनू। ओके, ये हो गया आपका SAP इजी एक्सेस मेनू। ओके, सो SAP इजी एक्सेस मेनू, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, मास्टर डेटा, वेंडर, जनरल, क्रिएट, ये आपका पाथ है भी। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली पाथ जाके क्रिएट करना चाह रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स में जाइए, उसमें मटेरियल मैनेजमेंट में जाइए, परचेजिंग में जाइए, मास्टर डेटा में जाइए, देन वेंडर, देन सेंट्रल, देन क्रिएट, XK01 टी कोड है इसका। सो ये आज का हमारा PPT है। दिस PPT आई एम गोना शेयर यू आफ्टर दिस क्लास। ओके, सो अब देखिए हम ये PPT को क्लोज भी कर लेंगे, वी डोंट नीड दिस। सो नाउ आई एम गोना क्रिएट, चार्जिंग नहीं है, लेट मी चार्ज दिस। Okay, so now quickly, we don't have much time. I wanted to close it early, so I'll go to easy access menu. चलो, तो यहाँ पे देखिए भाई, so I need to create a vendor, but before creation of a vendor आपको क्या क्या करना था, one is you need to create a vendor account group, second is number ranges, उसका पाथ था SPRO IMG, then you have logistics general, and you see a lot of things here. Then I'm going into business partner. So here you see at the end you'll find vendors, right? I can create a customer also. Customers will be created by sales department people, remember. Okay,
हु विल बिकॉज सेल्स, क्योंकि कस्टमर्स अपन क्रिएट करते हैं, अपन सिर्फ परचेजिंग करते, सेल कौन करते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट करते, उन लोग कस्टमर्स क्रिएट कर लेते हैं, अपन वेंडर्स बना रहे, सेम वेंडर जैसा बनाते, कस्टमर भी वैसे ही बनाते। ओके, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन वेंडर। यहाँ पे देखो कंट्रोल है, आई कैन क्लिक ऑन कंट्रोल। इन दिस टोटल स्क्रीन हम क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे बोले तो, ये पहला वाला डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स एंड फील्ड सिलेक्शन, फर्स्ट वन। देन फोर्थ वन डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, ये दोनों ही चीजें याद रखो। आई एम एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट वन। यहाँ पे देखो ऑलरेडी प्री डिफाइंड वेंडर्स, गुड सप्लायर्स, अल्टरनेट पे, ये ऑलरेडी बने हुए हैं ऑलरेडी। ओके, आई कैन क्रिएट ए न्यू वन, हम ऑलरेडी एक नया वाला बना सकते हैं by clicking on new interest, or I can create by copying the existing one। मैं समझू कि गुड सप्लायर में ले ले रहा हूँ, यहाँ पे आई एम क्लिकिंग ऑन कॉपी एज। कॉपी एज बोलो तो ऑलरेडी ये अकाउंट ग्रुप नाम आ गया, मगर ये 002 ऑलरेडी वहाँ पे है। अपन कुछ नया नेम देंगे भाई, यहाँ पे नया नेम क्या देंगे, देखो अपना अकाउंट ग्रुप का नाम जेड टाटा है हमारा, टाटा टी से दे रहा हूँ मैं अकाउंट ग्रुप। टी वेंडर अकाउंट ग्रुप है ना, तो याद रखने के लिए आप लोग को TV01 ओके, और TV00 एज यू विश, सिर्फ 4 नंबर दे सकता हूँ। टाटा वेंडर ग्रुप, ओके, TV00 बोल के मैं दे दिया यहाँ पे। और एक अकाउंट ग्रुप बनाना चाह रहे हैं आप लोग, TV01 बनाइए, TV03 बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे कोई रियल टाइम में कुछ अलग रहता, क्या बोलता अलग नहीं रहता, वहाँ भी तुम ही सजेस्ट करते उसको, टाटा वाले कुछ तुम अगर ऐसे भी इंस्टॉल करें तो उसको बोलते भाई देखो TV00 बना रहा हूँ मैं, क्योंकि बोले तो ये वेंडर अकाउंट ग्रुप है, टी बोलते आपका टाटा हो गया, वी बोलते वेंडर अकाउंट ग्रुप, आपको याद नहीं रहता इतनी चीजें बोले तो, इसलिए मैं इसको इजी बना रहा हूँ बोल के बोल सकता हूँ, टाटा वेंडर ग्रुप 00। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, नेम है, अकाउंट ग्रुप बना दिया आप, यहाँ पे टाटा गुड सप्लायर्स। ओके, टाटा के जितने भी गुड सप्लायर्स है वो लगा सकते हैं, यहाँ तो गुड सप्लायर्स बोल के लिख के यहाँ पे और कुछ भी ग्रुप का नाम लिख ले सकते हैं, कुछ भी, मैं खाली याद रखने के लिए टाटा बोल के मेंशन करा यहाँ पे, नेम टाटा गुड सप्लायर्स है। यहाँ पे देखो आपको जब से पीपीटी में एक चीज आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक अकाउंट ग्रुप क्या क्या कंट्रोल करता है बोले तो, फर्स्ट चीज था आपका नंबर रेंजेस को कंट्रोल करता, वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। वेदर इट इज वन टाइम अकाउंट और नॉट, ये भी कंट्रोल करता बोल के बोले हम लोग। सो वो कहाँ है, देखो यहाँ पे है। अगर मैं इसको क्लिक कर दिया तो ये आपका अकाउंट ग्रुप रहता, वन टाइम वेंडर होता। ओके, सिर्फ वन टाइम बाई कर सकते हैं, रेगुलर हम लोग बाई नहीं करते। डिफरेंस क्या है भाई, अगर मैं इसको वन टाइम क्लिक करूँ तो क्या होता है बोले तो, यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह या पेमेंट के डिटेल्स जो भी रहते, पेमेंट टर्म्स वही रहते ना, ये सब आप देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली व्हेन यू आर रेजिंग ए पीओ, जब इनवॉइस जब क्लियर करते रहते वो टाइम पे मैनुअली एंटर करते हैं आप वन टाइम वेंडर के पास, उसका डेटा पूरा स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। होता है ना भाई, वन टाइम वेंडर को रेगुलर वेंडर को डिफरेंस क्या है बोलते, रेगुलर वेंडर से आप रेगुलर खरीदते रहते तो क्या करते हैं, वो रेगुलर वेंडर का पूरा डेटा मेंटेन करते, उसका एड्रेस, उसका घर कहाँ है, उन्हें उन्हें कौन है मैनेजर, और इन लोगों का अकाउंट डिटेल्स क्या क्या है, अगर अकाउंट डिटेल्स 2 है तो 2 डिटेल्स भी मेरे पास रहना, सब चीज़ें मैं मेंटेन कर लेता हूँ। तो रेगुलर वेंडर है रहने से मैं पूरा डेटा मेंटेन कर लेता हूँ। वन टाइम वेंडर है भाई, मैं बार बार नहीं खरीदता हूँ, पेपर ग्लासा मंगा रहा हूँ मैं, साल में एक बार मंगाता हूँ चाय के पेपर ग्लासा, तो एक बार वन टाइम वेंडर बना के एक बंदे से खरीद लिया, नेक्स्ट ईयर में जरूरत नहीं है उसके नहीं खरीदता हूँ कि दूसरे के पास खरीदता हूँ, तो वन टाइम बना लेता हूँ मैं। सम ये XYZ पेपर कंपनी पेपर ग्लास ले लिया, वन टाइम कंपनी मेंटेन करना है तो वन टाइम क्लिक करते, तो वन टाइम निकाल दे रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑलवेज हम लोग वन टाइम नहीं यूज करते, रेयर केसेस में वन टाइम को यूज करता। उसके बाद यहाँ पे मेजर चीजें क्या है बोले तो, एक तो है नंबर रेंज देना, यहाँ पे नंबर रेंज ऑलरेडी XX बोल के देखिए, देखो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नंबर रेंज बने हुए, यहाँ पे देखो ये ग्रुप नंबर है, वेंडर ग्रुप 1 2 3 4 बोल के ऑलरेडी नंबर रेंज देखे, इसमें एक्सेस ले लिया, एक्सेस बोले तो क्या है, देखो ये से ZZ तक है, मतलब आप यहाँ पे जो है अल्फा न्यूमेरिक में देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, सो नाउ आई विल क्लोज दिस। ये नंबर रेंज बाद में कैसे चेंज करना मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। अजगर भाई नंबर रेंज नंबर्स पे नहीं है, ऐसा अल्फाबेट दे सकते हैं, नहीं दे सकते नंबर रेंज, अल्फाबेट में भी दे सकते हैं, हाँ वही दिखा रहा है आपको, वहां पे जाते हैं नंबर रेंज टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ मैं, इसलिए खाली डिफॉल्ट ने ऑलरेडी कॉपी करे ना हम लोग, कॉपी करे बोल के इन्हें ये ले लिया एग्जिस्टिंग, अगर मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ सेम मटेरियल ग्रुप वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, अल्फाबेट ले सकते हैं, ये अल्फाबेट भी ले सकते हैं वहाँ पे, मटेरियल ग्रुप वहाँ पे भी ले सकते हैं। टाटा गुड सप्लायर्स मैं यहाँ पे ले लिया XX बोल के, ऑलरेडी इसको चेंज करना है बाद में अपन चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए डेटा रिटेंशन लेवल्स परचेजिंग बोल के, आपको जो वेंडर का जो डेटा मेंटेन कर रहे हैं, ये वेंडर लेवल रहना या प्लांट लेवल रहना पूछ रहे हैं। ऑलवेज क्या करते लोग, प्लांट लेवल रख लेते या कुछ भी क्लिक नहीं करते। यहाँ पे कहीं को प्लांट लेवल रहना बोले तो वो प्लांट में जितने भी परचेज करना है मेरे को, प्लांट में एग्जिस्टिंग रहता, प्लांट लेवल प्लांट में रहता। ओके, सो अगर वेंडर लेवल रखे तो खाली वेंडर तक रहता, दूसरा जो है प्लांट को मैं दूसरा स्टोरेज लोकेशन को नहीं खरीद सकता हूँ।
सो ऑलवेज इसको क्लिक नहीं करो तो भी चलता है, या सिर्फ प्लांट लेवल ही रखना चाह रहे हैं तो आप प्लांट लेवल भी रख सकते हैं इसको। ओके, सो और कुछ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट? नथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। सो नाउ इंपॉर्टेंट एक ही चीज है यहाँ पे, एक आपका डिस्क्रिप्शन, एक आपका अकाउंट ग्रुप का नंबर, ये नंबर रेंज है आपका। अगर कोई बोला कि भैया मेरे को जो है डेटा जो है वेंडर सब रेंज लेवल रहना, अगर ये सब रेंज लेवल क्या है, यहाँ पे F11 में क्लिक करके हेल्प भी मिल सकता है आपको। सो यहाँ पे देखें क्या बोला, इंडिकेटर डिनोटिंग दैट द डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर ये वेंडर मास्टर रिकॉर्ड एट सब रेंज लेवल। सो डिफरेंट वेंडर्स है, वो सब रेंज बोले तो क्या है भाई, वेंडर सब रेंज बोले तो मैं जैसा बोला आपको, एक वेंडर ऑर्डरिंग पार्टी हो सकता, एक मेरा गुड सप्लायर हो सकता, एक इनवॉइसिंग पार्टी होती, चारों रहते, वो चारों एक ही ग्रुप के हैं। वो चारों ग्रुप के अंदर ही जो है मेरा डेटा, वो चार ग्रुप के लेवल में जो मेरा डेटा मेंटेन रहता, प्लांट लेवल मेंटेन नहीं रहता। ओके, अगर मैं प्लांट लेवल मेंटेन करा तो सब वेंडर्स जो है वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सब प्लांट्स में जो है, और मैं जो है सब क्या बोल सकते हैं, सब वो परचेसिंग ग्रुप जो है एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। देन आई विल कॉल इट एज ए प्लांट रिलेवेंट। ओके, तो अगर मैं इसको क्लिक भी नहीं कर सकता हूँ या यूज भी कर सकता हूँ, यू कैन यूज इट। सो नो आई एम एंटरिंग इट। सो यहाँ पे देखो अपना क्रिएट हो गया TV00 टाटा गुड्स सप्लायर्स। ओके, आई कैन सेव इट। मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इन्हें पूछ रहा कहाँ पे सेव करना, ये ऑलरेडी पुराना रिक्वेस्ट है हमारा, वहां पे सेव हो रहा। ये हो गया आपका अकाउंट ग्रुप। अगर नेक्स्ट में नंबर रेंजेस को जा रहा हूँ, आई कैन क्रिएट ए नंबर रेंज। नंबर रेंज में दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे, वहाँ का जैसा ग्रुप बनाना ये सब नहीं है, सिर्फ एंटर क्लिक करो फर्स्ट। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे नंबर रेंज बने हुए देखो। सो 1 से यहाँ पे ऑलरेडी 2 सीरीज है, 3 सीरीज है। आप एग्जिस्टिंग नंबर रेंज को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी XX का एक नंबर रेंज है, 4 का है, 3 का है, ये नंबर रेंज ऑलरेडी है ना। ये इस नंबर रेंज में कौन सा भी एक जो है आपको असाइन कर ले सकते हैं आपके अकाउंट ग्रुप को। कहाँ है अकाउंट ग्रुप, देखो आप बनाए। सो क्या था भाई अकाउंट ग्रुप हमारा, टाटा वेंडर 00, ये है। यहाँ पे देखो नंबर रेंज मेंटेन करा मैं। नंबर रेंजेस में क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 बने हुआ है, 1 चूज करो तो क्या होता है मेरे को, नंबर जब भी मैं सप्लायर बनाता हूँ वो 1 से शुरू होता है, 1 सप्लायर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा आता। अगर मैं सेकंड चूज करा तो क्या होता है, 1 लाख से शुरू होता, 3 बोले तो 2 लाख से, 4 बोले तो 3 लाख से, 6 बोले तो ये नंबर जैसे 6 सीरीज से। ई भी यूज करो तो ये आता है, एस यूज करो तो ये नंबर बन जाता है, XX अगर यूज करा मैं तो ये अल्फाबेटिक्स में जो है आप बना सकते हैं। तो ऐसा यहाँ डिफरेंट नंबर रेंजेस है। चलो भाई नहीं भाई मैं पुराना नहीं यूज करता हूँ, जरा नया बता के दिखाओ बोले तो आई कैन शो ये न्यू वन। ओके, इंटरवल्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे न्यू इंटरवल देखिए, इंसर्ट लाइन बोल के यहाँ पे इंसर्ट लाइन, यहाँ पे नंबर रेंज ऑलरेडी जो 1 2 3 ये यूज नहीं कर सकते आप। यहाँ पे 6 है, कॉपी कर रहे हो तो क्या ले रहे हो, इन केस कॉपी कर रहे हो तो ऑप्शन क्या सेलेक्ट करें? कॉपी ऑप्शन नहीं रहता यहाँ पे। नहीं तो अगर ऑलरेडी है सो नंबर रेंज को ही कॉपी कर रहे हो। हाँ कॉपी कर सकते, कॉपी करना बोलो तो देखो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर रेंज में से देख लेना आपको कौन सा नंबर रेंज होना। मेरे को पहला वाला होना होगा, मैं डिसाइड कर लिया तो मैं क्या करता, गो टू बैक एंड मेरा जो ग्रुप जो बनाया था ना मैं अभी, सपोज मेरा ग्रुप था TV00, इसको मैं यहाँ पे नंबर रेंज बना से मेंटेन कर सकता हूँ। कौन सा नंबर रेंज, ये ऑलरेडी डिफॉल्टेड जो है, समझे 6 यूज करा तो 6 यूज करके मैं सेव कर देना, सेव हो जाता ऑटोमेटिकली। नहीं भाई मैं XX रखना चाह रहा हूँ इसको अल्फाबेटिक्स में, बोलते ये यूज कर सकता हूँ मैं। ओके, सो नाउ आई विल गो बैक इंटरवल्स। अब नया इंटरवल बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक तो इंटरवल को डिलीट कर सकते हैं आप, अब नया बना सकते हैं, तो नया मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 यूज करे ऑलरेडी, मैं 7 नंबर भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, या नहीं तो कुछ भी Z1 यूज कर सकता हूँ, या नहीं तो T1 यूज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी पे कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं T1 लगा ले रहा हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रहने के लिए। फ्रॉम नंबर कहाँ से देंगे अभी, फ्रॉम नंबर देखो, फ्रॉम वेयर आई कैन गिव, ऑलरेडी यहाँ पे देखो सब नंबर रेंजेस कवर होके ऑलरेडी। सपोज के इसके बाद वाला नंबर रेंज अपन देंगे यहाँ पे, Ctrl+C Ctrl+V, 3 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ 4 देके देख रहा हूँ, अगर वो अवेलेबल है तो वो नंबर रेंज अपने को देता हूँ। Ctrl+C Ctrl+V, ओके, मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट्स गुड, अवेलेबल है नंबर रेंज। सो हम लोग अभी नंबर रेंज मेंटेन करें, तो पहला काम क्या था आपको, इंटरवल में जाकर नंबर रेंज मेंटेन करना। उसके बाद नंबर रेंज में आके जो आप, जैसे आप मटेरियल टाइप में क्या कर रहे थे, पहले नंबर रेंजेस बना के वो नंबर रेंजेस को मटेरियल टाइप को असाइन कर रहे थे, यहाँ पे भी वैसे नंबर रेंज बनाना, अपना अकाउंट ग्रुप को असाइन करना। अपना अकाउंट ग्रुप कौन सा था भाई, TV00, स्क्रॉल करो तो मैं नीचे दिखता है, या ऐसा भी कर सकते हैं। XX है यहाँ पे, XX मैं निकाल लेता हूँ, मेरे को ना कोई XX भाई, मैं जो टाटा का बना लिया एज सेव कर लेता हूँ मैं, आई कैन सेव इट। पूछ रहा से फिर सेव करना कहाँ पे, सेम वही मास्टर डाटा के जो TR में सेव करना। अब हो गया। अब देखो भाई हम वेंडर बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे वेंडर अजी, मैं क्विकली बनाता हूँ इसको, और कुछ भी डाउट्स है तो कल देखेंगे अभी, ठीक है। ठीक है सर भाई, बना दो क्या वेंडर,
नहीं कल ही बनाए तो बेहतर रहता है क्योंकि नहीं बना दीजिए बना एक वेंडर बना देंगे भाई, कल आपको समझ में नहीं आता कल फिर एक बार और एक वेंडर बनाता हूँ मैं, ठीक है। ओके अब एक वेंडर बना के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जरा जो गैप भी आ गया है, प्रैक्टिस करने भी आसानी रहती। और ये जो वीडियोस है भाई, मैं जो क्लास बता रहा हूँ सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शंस है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है वीडियो की फिर देखने की, रेफरेंस के लिए है। वीडियो अपलोड जो है लेट भी हो सकता, क्योंकि वो एडमिन साहब के पास लैपटॉप नहीं है, उन्होंने जो है हमारी जो पीएसएफ की ऑफिस है, वो ऑफिस को अलबत्ता स्पेशली जाना, उन्होंने ट्रैवल करके वहाँ तक जाना और सिस्टम में लॉगिन करके फिर वो ड्राइव में जो सेव होके है क्लाउड में, उसको निकालना, उसको फिर सेट करके जो यूट्यूब में अपलोड करना। तो ये उनको हमेशा पॉसिबल नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक दिन में 2 दिन में एक बार कर रहे हैं। सो आप ट्रांजैक्शन कोड्स याद रखिए, आपके पास मटेरियल है, पीपीटी भी है, वो पाथ यूज करके आप करना बार बार। तो वीडियो की जरूरत नहीं है हमेशा आपको, सिर्फ मैं अब हम जो है एवरी क्लास में ज्यादा से ज्यादा मैं 3 टिकोड या 4 टिकोड बोल रहा हूँ, या 3 पाथ या नहीं तो 4 ही पाथ बोल रहा हूँ, उसको इजीली याद रख सकते हैं आप। अगर याद भी नहीं है तो मटेरियल देख सकते हैं, या नहीं तो गूगल में कर सकते हैं या पीपीटी देख सकते हैं, ठीक है। सो अब XK01 में जा रहे हैं हम, सीधा सीधा XK01 मार दिया तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, तो वेंडर, कंपनी कोड, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट ग्रुप, ये सब आ गया। ओके नेक्स्ट, आई कैन गो बैक। और एक था भाई XK01 आ गया, और एक टिकट था, कौन तो बोलो। MK01 वेंडर बनाने के लिए और एक तरीका है मेरे को, SK01 एक था MK01, सिर्फ परचेजिंग का डेटा मेंटेन करना है। देखो यहाँ पे देखो कंपनी कोड गायब हो गया, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या था, कंपनी कोड का डेटा मेंटेन नहीं होता जहाँ पे MK01 यूज करे। तो समझो कि ओनली मैं FK01 बना के अकाउंट्स वाला वेंडर बनाना चाह रहा, तो यहाँ पे परचेजिंग डेटा गायब हो गया, कंपनी कोड एक ही है। नहीं भाई, मेरे को एक ऐसा सप्लायर बनाना है, उसके पास से मैं खरीदता हूँ भी बेचता हूँ भी, आई वांटेड टू मेंटेन अकाउंटिंग डेटा एज वेल एज परचेजिंग डेटा, आई कैन गो थ्रू XK01 नाउ आई एम एंटरिंग। ये देखिए, अच्छा भाई ये है हमारा टी कोड। तो पाथ क्या है इधर, लॉजिस्टिक्स, देन परचेजिंग, मास्टर डेटा, इसमें देखो इन्फो रिकॉर्ड है, सोर्स लिस्ट, कोटा है, वेंडर पे परचेजिंग भी है। परचेजिंग बोलो तो MK01 आता। उसके बाद क्या है, सेंट्रल में जा रहा हूँ मैं, सेंट्रल में गए तो XK01 है। सेंट्रल बोले तो क्या है, कॉमन फॉर परचेजिंग और फाइनेंस वाले दोनों को कॉमन है, XK01 क्लिक कर दिया। अभी देखो कंपनी कोड हमारा क्या है भाई, टाटा मोटर्स TM01, परचेज ऑर्गेनाइजेशन TIN1 ऑलरेडी ले लिया। यहाँ पे आपको देना पड़ता, हमेशा यहाँ पे नहीं रहता वैल्यू, आपको देना पड़ता। देना कैसे दे सकते हैं आप, इसको जो है ड्रॉप डाउन बटन क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है पूरे आपकी लिस्ट ऑफ कंपनी कोड्स रहते हैं, उसमें से कौन सा कंपनी कोड आपका है वो चूज कर लेना। आप देखो यहाँ पे कंपनी कोड बहुत सारे बने हुए है, उसमें हमारा टाटा का था TM01, ऐसा सेलेक्ट करना। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी सिलेक्ट करना। अकाउंट ग्रुप कंपलसरी है। देखो मैं अगर अकाउंट ग्रुप नए जैसा बनाना चाह रहा हूँ तो क्या होता है देखेंगे, अकाउंट ग्रुप निकाल दे के एंटर करा मैं क्या बोल रहा, स्पेसिफाई द अकाउंट ग्रुप, दैट मींस क्या है भाई, वेंडर अकाउंट ग्रुप के बगैर जो है हम मटेरियल नहीं बना सकते। एंड अकाउंट ग्रुप मस्ट बी असाइन टू ईच वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, ये जो मैं कंडीशन बोला ये चीज याद रखिए। तो यहाँ पे जो है अकाउंट ग्रुप हमारे लिए हमेशा मैंडेटरी है। तो अकाउंट ग्रुप क्या था, डिफॉल्ट 0002 ले रहा था उन्हें गुड सप्लायर, मगर हम ऑलरेडी नया क्रिएट करे। क्या था भाई हमारा अकाउंट ग्रुप, TV00 एंटर, ये देखो TV00 आ गया, मैं क्लिक कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, अब एंटर करो। ओके एंटर करने के बाद देखो क्रिएट वेंडर एड्रेस, एड्रेस पूछ रहा पहले। यहाँ पे टाइटल देखो, एक वेंडर बना रहे हैं भाई अपन, कौन सा वेंडर बनाएंगे बोलो, MRF टायर्स बनाएंगे। ओके एक टायर का मटेरियल भी बनाए थे ना हम, रबर मटेरियल भी, टायर्स मटेरियल। अब टायर्स खरीदना बोले तो मटेरियल बन गया, मगर सप्लायर भी बनना मेरे को। सप्लायर मैं MRF टायर्स बना सकता हूँ, C8 बना सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे MRF बनाता हूँ, आप लोग C8 बनाइए, कोई TVS बनाइए। ओके मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे करिए। कंपनी, ओके कंपनी, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन से खरीद रहे हैं आप मिस्टर बोल के ले सकते हैं, कोई लेडीज से खरीद रहे हैं मिस। ओके तो ऐसा आप मेंशन कर सकते हो, कंपनी मेंशन करो। यहाँ पे नेम क्या है, MRF टायर्स, ये हमारी सप्लायर है MRF टायर्स। और ये पे नेम टू भी पूछा उन्होंने, सो MRF टायर्स हैदराबाद। ओके उसके बाद सिस्टम कहीं को बोले तो कभी भी वेंडर को ढूंढना है आपको, उसका नंबर याद नहीं रहता हमेशा, वो 40000 30000 मेरे को नंबर याद नहीं रहता भाई। साथ ही मेरे को वेंडर को ढूंढना है, कैसा मैं ढूंढूं बोले तो सिस्टम यूज रख लो। सिस्टम यूज करके अपन वेंडर को सर्च कर सकते हो, कहाँ सर्च कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो देन सिस्टम क्या रख लेंगे बोले तो सिंपली MRF बोल के रख लेंगे, MRF बोल के मारते मेरे को आ जाता। ओके सो यहाँ नहीं तो कॉमन टायर्स बोल के भी रख ले सकते हैं आप। ओके सो आई क्विकली सेट MRF बोल के मारता आता। स्ट्रीट पूछ रहा है यहाँ पे, स्ट्रीट नेम कुछ भी यहाँ पे जो है हैदराबाद का कुछ भी स्ट्रीट नेम दोगे, जेम्स स्ट्रीट बोल के डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके जेम्स स्ट्रीट हो गया।
ये हाउस नंबर पूछ रहा कुछ भी 23-1। ये क्या है भाई आपका पोस्टल कोड है 500005 कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे। सिटी हमारी हैदराबाद है राइट। एंड कंट्री इंडिया। रीजन कौन सा रीजन जो है ऑलरेडी बने हुए रहते हैं यहाँ पे डिफरेंट रीजन रहते हैं मल्टीपल आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश कुछ भी है यहाँ पे। तो तमिलनाडु नहीं है तेलंगाना नहीं है हमारा 1 ले सकता हूँ मैं इधर एंटर मारेंगे फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया। ये टैक्स रिलेवेंट डेटा है टैक्स वाले कौन मेंटेन करते हैं एफआई वाले क्योंकि हम अकाउंटिंग वाला भी ले रहे ना तो यहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी भी नहीं है नहीं मारे तो नेक्स्ट स्क्रीन में जा सकते एंटर मारे तो नेक्स्ट स्क्रीन चला गया। यहाँ पे देखो बैंक डेटा मेंटेन करना वेंडर का कंट्री की बैंक अकाउंट होल्डर ये नहीं दिए तो भी आगे जा सकते हैं अपन क्योंकि ये कौन को मेंटेन करते हैं फाइनेंस वाले मेंटेन करते हैं नहीं भाई अपन मेंटेन करेंगे बोले तो वो भी करेंगे देखो यहाँ पे कर सकते हैं आप कंट्री इंडिया बैंक की कुछ भी दे सकता हूँ मैं ICICI HDFC कुछ भी बैंक अकाउंट उसका अकाउंट नंबर कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अकाउंट होल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं असलम खान। ओके सो माई क्लिक ऑन एंटर क्लिक कर दो नेक्स्ट चले गया। अभी देखो कॉन्टैक्ट पर्सन बोलते देखो MRF टाइल्स में टाइल्स खरीदने जा रहा हूँ मैं मगर हमेशा मेरे को वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट पर्सन रहता है जिससे मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ कहाँ है भाई स्टेटस क्या है चेक करने। वो रिसेप्शनिस्ट भी हो सकता है नहीं तो वो वहाँ पर जो है सेल्स मैनेजर भी हो सकता है वहाँ का या जो है स्टोर्स मैनेजर हो सकता है या कोई भी हो सकता है तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं आप फर्स्ट नेम वहाँ पे कौन है भाई वहाँ जहाँ से खरीदना है आपको बोले तो वहाँ पे कोई भी हो सकता है उसमें समझो कि वसीम बोल के है वहाँ पे फर्स्ट नेम। भाई ये वेंडर्स में यहाँ पे इंटरनल बोल के क्यों बता रहा? MRF तो एक्सटर्नल होता है। क्या बोले इंटरनल नंबर रेंज भाई नंबर रेंज ले रहा हूँ इंटरनल नंबर रेंज अच्छा अच्छा नंबर रेंज इंटरनल दिया ना अपन ये जी। नंबर रेंज है ये नंबर रेंज है। अच्छा सो यहाँ पे देखो नेम क्या है उनका वसीम है इनका देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट रहता डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के समझो इन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट के है ओके या यहाँ पे डिफॉल्ट ऑलरेडी रहता सॉरी इसमें चूज कर लेना अपन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहते कौन से डिपार्टमेंट के है सेल्स के है तो 0003 मैं चूज कर लेना यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे है देखो फंक्शन इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोहम्मद वसीम कौन है वो सेल्स डिपार्टमेंट में मैनेजर है या क्या है उन्होंने एग्जीक्यूटिव है क्या है यहाँ पे देख लो यहाँ पे रहते हेड ऑफ सेल्स है उन्होंने या जो है उन्होंने क्या कह सकते हैं और कुछ भी है प्रोडक्शन मैनेजर है या उन्होंने या जो हेड को कौन भी है तो हम समझे कि हेड ऑफ सेल्स समझ लेंगे उनको तो मैं 03 दे दी। ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहता है ये चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है ओके। और कुछ भी नेम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप एंटर मार दीजिए नेक्स्ट पे चले जाएंगे आप। देखो डिस्क्रिप्शन ले लिया देखो डिपार्टमेंट सेल्स का हो गया फंक्शन 3 हेड ऑफ सेल्स हो गया ना एंटर मार दिया मैं। अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली रिकंसिलिएशन अकाउंट को मैं हेड आउट कर दिया यहाँ पे कई को हेड आउट कर दिया यहाँ पे देना ऑलवेज याद रखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमेशा 2 चीज़ें देना रहता है यहाँ पे रिकॉन अकाउंट की कैश मैनेज ग्रुप एंड एज वेल एज शॉर्ट की। ये रिकॉन अकाउंट को मैं हेड आउट कर दिया कहीं को बोले तो अपन ऑलरेडी डिफाइन नहीं कर रहे वो एफआई वाले करना रहता ठीक है। कैसा हेड आउट करते भाई ये वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। शॉर्ट की है यहाँ पे कैश मैनेजमेंट ग्रुप अगर मैं कुछ भी नहीं मार सके एंटर मारूँ तो देखो क्या बोल रहा है इन्हें फिल इन ऑल रिक्वायर्ड एंट्री ग्रुप्स कैश मैनेजमेंट ग्रुप पूछ रहा। ये कैश मैनेजमेंट ग्रुप क्या है भाई जैसा परचेसिंग ग्रुप रहता है वहाँ पे यहाँ पे भी कैश मैनेजमेंट ग्रुप रहता। हम जो वेंडर खरीद रहे हैं MRF वाला उन्हें फॉरेन है डोमेस्टिक है डोमेस्टिक वाला है तो ये अगर उन्हें वन टाइम वेंडर है तो मैं ये AC यूज करता हूँ ऑलरेडी यहाँ पे बने हुआ है देखो कुछ भी अगर कस्टमर है तो डोमेस्टिक कस्टमर तो ये कुछ भी ऑलरेडी A1 यूज करते हैं क्योंकि डोमेस्टिक वेंडर है। अगर MRF ने ऐसा कुछ भी जो है और मिशेलिन है मिशेलिन कौन सा है कंपनी बाहर की कंपनी है तो मैं फॉरेन बोल के लगा लेता हूँ। MRF लोकल का है तो A1 बोल के लगा दिया मैं ओके एंटर मार रहा हूँ। पेमेंट टर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ से जो हमारे इंपॉर्टेंट है ये परचेजिंग का रिलेवेंट डेटा है। पेमेंट टर्म्स क्या है देखो आप उसको पेमेंट करना है वेंडर को जब भी MRF से टायरा खरीदते हैं पेमेंट कैसा करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे कुछ कंडीशन है देखो 0001 अगर मैं लगाया तो पेएबल इमीडिएटली ड्यू नेट अगर उन्हें सप्लाई कर दिया इमीडिएटली पे कर देना पूरा पैसा ये कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो ये लगा सकते हैं। ये अग्रीड है मतलब MRF से आपका जब अग्रीमेंट होता है उन्हें बोलता है कि भाई जब भी मैं सप्लाई करता हूँ इमीडिएटली मेरे को पैसे होना उन्हें बोलता है कि देखो नहीं और एक कंडीशन क्या है यहाँ पे विद इन 14 डेज 3% अगर तो सप्लायर क्या बोला भाई आप जो है इमीडिएटली भी पे कर सकते हैं अगर जो है आप 14 डेज ऑर्डर करते हैं जो है विद इन 14 डेज में अगर आप पे कर देंगे तो 3% में डिस्काउंट देता हूँ आप लोगों को ये अगर यूज करते हो। अगर आप 30 डेज के अंदर करेंगे तो 2% कैश डिस्काउंट देता हूँ। अगर वो 45 डेज से एक्सटेंड कर रहे हैं पे करने के लिए टायर्स में सप्लाई कर दिया 45 डेज के तक वेट करने के बाद आप पे कर रहे हैं तो मैं कुछ भी डिस्काउंट नहीं देता हूँ। अगर आप 14 दिन में पे कर दे तो 3% देता हूँ 30 डेज में पे कर दे रहे हैं मेरे को तो 2% देता हूँ। एक चीज है। उसके बाद देखिए और बहुत सारे हैं 14 डेज मतलब ऑर्डर करने के बाद नहीं या डिलीवरी के बाद? डिलीवरी के बाद पे करना रहता ना उसको डिलीवर कर दिया मैं पेमेंट करना है उसको 0004 पे कर रहा हूँ मैं। ये क्लिक करो तो क्या होता
14 डेज के अंदर अगर मैं पे कर दिया तो 3% कैश डिस्काउंट दे रहा, 30 डेज में करे तो 1%, 60 डेज में अगर करा तो ड्यू नेट पूरा देना पड़ता है मेरे को। यहाँ पे 45 का नहीं है ऐसा, मतलब जैसा आपको रिलेवेंट है वैसा लेना पड़ता है। 50 डेज का कुछ भी यहाँ पे इमीडिएटली ड्यू नेट भी है यहाँ पे। उसके बाद पेएबल इमीडिएटली ड्यू नेट, उसके बाद बेस लाइन डेट ऑन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो हर जो है 10th मंथ के अंदर उन्हें क्लियर करना रहता है उसको। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे रहते हैं। यूजुअली 0001 यूज करते हैं। अगर उन्हें कुछ कंडीशन बोला कि भाई ये कौन बनाते बोले तो ये पूरा पेमेंट टर्म्स जो भी बनाते हैं वो अकाउंट्स वाले बनाते। तो अकाउंट अगर उन्हें बोला कि भाई देखो आप अगर 14 डेज में दे करेंगे तो ये पे करता हूँ बोले तो 0002 क्लिक कर लो, डिस्काउंट ऑफर्स है अपने को बोले तो। ओके, उसके बाद पेमेंट मेथड्स है। आप पेमेंट कैसा करना चाह रहे हैं वेंडर को? प्लेस में 10 डेज बोल के लिखे तो कैसे उसको कैसा लिख सकते हैं? क्या बोले? अब वो 14 डेज का वो जो पेमेंट बोले थे ना, अगर मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ओनली 10 डेज बोल के एडिट करके लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है 10 डेज का कुछ है कॉन्फ़िगरेटेड, तो देखना यहाँ पे देखो 10 डेज का एक है, देखो विदिन 10 डेज 5% कैश डिस्काउंट। अगर ये नहीं है भाई, मैं डिफॉल्टली लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे नया क्रिएट करना पड़ता है। फिर नया क्या पड़ते, नया कभी भी स्क्रीन में कभी भी नहीं करते अपन, नया फिर SPRO में AMG में जाके फिर क्रिएट करना होता है, पेमेंट टर्म्स में जाके नया पेमेंट टर्म आपको बनाना पड़ता है। ठीक है भाई। सो पेमेंट मेथड्स है। पेमेंट मेथड्स क्या है भाई? आप वेंडर को पे करना, कैसा पे करते हैं? चेक में पे कर सकते हैं उसको, कैश में पे कर सकते हैं, या अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, देखो चेक है, बैंक ट्रांसफर है। चेक देना चाह रहे हैं, बैंक ट्रांसफर देना चाह रहे हैं, और एक बनाना है आपको कैश, तो वो भी बना सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन पूरे हम क्या करते हैं आज ये फंक्शन कंसल्टेंट अकाउंट ग्रुप बनाते एंड एज वेल एज सेकंड क्या था हमारा नंबर रेंज, इसको डिफाइन कर लेते। अब ये पेमेंट के टर्म्स है या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये पूरे आपकी FI टीम बनाती। यहाँ पे देखो चेक है, बैंक ट्रांसफर है, आजकल लोग जो है बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आई क्लिक ऑन बैंक ट्रांसफर। ओके, मतलब उसको पूरा बैंक ट्रांसफर करना पड़ता है अपने को पेमेंट। ओके, उसके बाद अल्टरनेट पे ही है, मतलब पेमेंट ये वेंडर को नहीं करना है, आपको दूसरा करना रहता है बोल, तो यहाँ पे अल्टरनेट पे ही चूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करके जो है आपको यहाँ पे जो है ऑलरेडी कुछ बहुत सारे वेंडर्स जो ऑलरेडी क्रिएट करके रहते हैं। मैं जैसा बोला आपको, ऑर्डर ऐसे करते हैं, पेमेंट ऐसे करते हैं, तो उसका नंबर यहाँ पे लिख ले सकते हैं आप। ओके, सो दिस इज द वन, और कुछ भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ये पेमेंट ब्लॉक बोल के रहता है। ये पेमेंट ब्लॉक क्या है? यहाँ पे अगर ये वेंडर कुछ भी नखरे कर रहा है, उसको पेमेंट आपको नहीं करना है, साथ ही नहीं करना रहता, उसको ब्लॉक फॉर पेमेंट ये बोल के लग सकते हैं। ओके, या जो है पोस्ट प्रोसेसिंग IP इनवॉइस प्रोसेसिंग, मतलब इनवॉइस प्रोसेस होने के बाद पेमेंट करना, ऐसा कुछ कंडीशन लगा सकते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट होना बोल के रख सकते हैं, या इनवॉइस वेरीफाई होने के बाद ही पेमेंट करना बोल के रख सकता है। ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। यूजुअली क्या है सर छोड़ देते हैं लोग इसमें। अगर किसी को पेमेंट ब्लॉक करना है सप्लायर को, सप्लायर से क्वालिटी गड़बड़ है बोले तो ये सप्लायर को, अब देखो मैं कुछ भी मेंटेन नहीं करा, बाद में ये सप्लायर को हमेशा पेमेंट के लिए ब्लॉक करना रहता बोले तो फिर ये इसको XK02 में जाके ये सप्लायर को ओपन करके पेमेंट ब्लॉक में जाके यहाँ पे ये वाला क्लिक करना रहता मेरे को, B या ये ब्लॉक्ड फॉर पेमेंट, इसको क्लिक कर लेता हूँ मैं, ARB ब्लॉक फॉर पेमेंट हो जाता। ओके, नेक्स्ट में चले आ रहा हूँ मैं। डनिंग प्रोसीजर ये पर आपने को जरूरत नहीं है, अकाउंट्स का है। अब देखो ये भी परचेसिंग डेटा है, ये इंपॉर्टेंट परचेसिंग डेटा है जहाँ पे आपको मेंटेन करना है। वो अब तक जो डेटा था अकाउंटिंग डेटा था, अपन एडिशनली मेंटेन कर रहे। अब हमारा ये है ऑर्डर करेंसी। आप जो है कौन सी करेंसी में ऑर्डर कर रहे हैं? ये लोकल MRF वाला है, INR में करते। अगर बाहर से खरीद रहे हैं टायर्स तो USD में करते, या UAE से खरीद रहे हैं पेट्रोल डीजल तो वहाँ पे वहाँ का दीनार में, या तो वहाँ के जो है करेंसी में करते हैं आप, रियाल में। ओके, अब ऑर्डर करेंसी हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहता। डायरेक्टली आप INR लिख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो पूरे करेंसीज यहाँ पे रहते, ऐसी करेंसी नहीं रहती जो नहीं ही करेंसी, सब करेंसियाँ रहती हैं। नहीं है तो वो भी बना ले सकते हैं आप। GHI यहाँ पे देखो आपका INR रहता, इंडियन रुपी। टर्म्स ऑफ पेमेंट ये देखो, जब से डिस्कस कर रहे थे अपन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑलरेडी। टर्म्स ऑफ पेमेंट पेएबल इमीडिएटली यूनिट है या कैश देना है, ये वहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। अकाउंट्स वाला वहाँ दे लेता, हम यहाँ दे लेते। इनको टर्म्स है यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। मिनिमम ऑर्डर मतलब देखो यहाँ पे ये वेंडर से जो है हमेशा इन्हें वेंडर बोल दिया कि भाई देखो तुमको चुप चुप के 1 टायर होना 2 टायर होना बोले तो नहीं देता हूँ मैं। ओके, खाली 5,000 की खरीदारी होना 10,000 की होना बोले तो मिनिमम मेरे पास 50,000 की खरीदारी करना। तो यहाँ पे देखो 50,000 रुपये का लिख दिया। तो जब भी PO रेस करते हैं अपन 50,000 की वैल्यू का PO कुछ रेस कर सकते हैं, उससे कम अपन रेज नहीं कर सकते, उसके एबो कर सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर मेंटेन करे तो ये जरूरत नहीं है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, ये स्कीमा ग्रुप वेंडर वगैरह बाद में आते हैं। प्राइसिंग जब अपन प्रोजेक्ट डिस्कस करते तो उसमें जब अपन वेंडर ओपन करके फिर यहाँ मेंटेन करते वो क्या है जब मैं बताता हूँ। उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है भाई यहाँ पे यूज करने के लिए बोलते हो, GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन। ये हमेशा टिक रहना, ऑलवेज कहीं को रहना भाई। बोले तो इनवॉइस पेमेंट करने वाला वेंडर बोलता कि भाई मैं सप्लाई कर दिया जल्दी में पैसे दे दो बोल के बोलता, मगर उसको रेफरेंस रहना ना कि नहीं सप्लाई करा नहीं करा। तो ये क्लिक करो तो क्या आता बोलता ये वेंडर हमेशा जो है, ये वेंडर का इनवॉइस हमेशा कब प्रोसेस होना? GR प्रोसेस होने के बाद ही होना, गुड्स रिसिप्ट आप पोस्ट होने के बाद ही होना।
GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन बोलते वो है, GR पे बेस्ड होकर रहता है इसका इनवॉइस। GR कंपलसरी पोस्ट होना इनवॉइस होने के लिए। अगर मैं ये क्लिक नहीं करा, पीओ रेज होने के बाद उन्हें डिलीवर करो ना करो, मैं पेमेंट कर सकता हूँ, याद रखो। Interviewer will ask you what will happen if I am not activating GR based invoice verification in for a supplier. What you have to say is like, if you are not activating that, what will happen is like after the creation of PO, anytime you can pay to the vendor. अगर वो वेंडर आपको जाना माना वेंडर है, उन्हें डिलीवरी करो ना करो उसको पे कर दे तो कर देता भाई, बोले तो पहले पे कर दे सकते हैं आप। यू नो नीड टू डीएक्टिवेट दिस। अगर इसको एक्टिवेट कर दिए तो उन्हें GR गुड सप्लाई करने के बाद ही GR को वो इन्वेंट्री वाला चेक करके क्वालिटी चेक कर लेके उन्हें सब एक्सेप्टेड बोलने के बाद ही उसका इनवॉइस वेरीफाई हो सकता है या इनवॉइस पोस्टिंग हो सकती है, ये याद रखिए। सो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन एंटर। अब देखो यहाँ पे पार्टनर फंक्शंस आ गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं जैसा बोला आप लोगों को पार्टनर फंक्शन बोल के। पेमेंट्स में अच्छा एडवांस पेमेंट ऐसा कुछ देने का रहता तो फिर उसके लिए कुछ ऑप्शन अलग से रहता, हाफ पेमेंट पहले देना ऑर्डर मैं बोला ना वहाँ पे पेमेंट टर्म्स में क्रिएट कर लेना, आप नया क्रिएट कर लेना। फिर आप SPRO स्क्रीन में जाके वो पेमेंट टर्म्स जो भी रहते वो ऑलरेडी FI वाले कॉन्फ़िगर करते। आप भी करना है तो आप भी जो ट्रांजैक्शन में जाके SPRO में जाके ढूंढे कर ले सकते हैं। न्यू में जाइए, SPRO में जाइए, वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, वहाँ पे आप पेमेंट टर्म्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नया पेमेंट टर्म बना ले सकते हैं आप वहाँ पे। ओके सो यहाँ पे देखिए पार्टनर फंक्शन से इसको एंटर मार दो भी सेव हो सकता। अब समझो कि MRF टाइप्स वाला यहाँ पे आप सामने मेंशन करें एड्रेस हुए, वही MRF टाइप्स वाला जो आपका सप्लायर है उन्हें जो आपको सप्लाई करता है उसको पेमेंट करना है तो ये कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, यहाँ पे जो है अलग अलग है, 4 MRF वाले हैं हैदराबाद में, एक से पेमेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी मेंटेन करके नहीं है क्योंकि नहीं है, मैं एक ही मेंटेन कर रहा था, वहाँ एक ही सप्लायर है मेरे पास। तो यहाँ पे जो है मैं पार्टनर नंबर्स को मेंटेन कर सकता हूँ, पार्टनर फंक्शन ये यूज है। यूज है देखिए पार्टनर फंक्शन जो है यहाँ पे ऑर्डरिंग पार्टी वगैरह लिख सकते हो, यहाँ पे उसका नंबर लिख सकता हूँ, उसका वेंडर नंबर जो सप्लायर्स आप बनाए थे ऑलरेडी वो सप्लायर्स मैं मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर फंक्शन की जरूरत नहीं है, ये की सप्लाई कर रहा है ये की डिलीवर कर रहा। तो कोई पूछता है आपको पार्टनर फंक्शन, कभी कभी रैंडम इंटरव्यूज में पूछ सकता है कोई पार्टनर फंक्शन का यूज क्या है, तो बोल सकते हैं आप एक वेंडर है उसको मैं मल्टीपल पार्टनर फंक्शन मेंटेन कर सकता हूँ। व्हेन आई विल मेंटेन इज लाइक, so when I wanted to buy a material from one vendor and when I wanted to pay to another vendor within that same group, so I will maintain partner function। so ऐसा, so multiple आपको पार्टनर्स अगर है सेम ग्रुप के अंदर so कर सकते हैं। सेव्ड फर्स्ट, सेव करना है, यस। अब हमारा वेंडर सेव हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ नीचे क्या दिया है, देखो नीचे क्या नोटिफिकेशन है आपको, वेंडर हैज बीन क्रिएटेड फॉर कंपनी। वेंडर क्या है नंबर देखो भाई, नंबर क्या दिया है यहाँ पे 400000। क्या को दिया है नंबर बोलो, क्योंकि अपन लोग ये अपना नंबर रेंज का नंबर रेंज अपन क्या करे T1 बोल के मेंटेन कर रहे थे शायद ना, T1 या T0 कुछ मेंटेन कर रहे थे। सो वो मेंटेन समझ रही, तो वो जो है नंबर जो मेंटेन करे वो नंबर यहाँ पे लिया। अगर और एक मेडल में बना दिया यहाँ पे कल के दिन MRF की जगह CFS भी बना दिया तो और एक क्या नंबर हो सकता है उसका 1। अच्छा, एंडिंग विद 1। वो मैं अकाउंट ग्रुप TV00 यूज करे तो दूसरा अकाउंट ग्रुप यूज करे तो उसका जो पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप है, मतलब उसका जो नंबर इंजेक्शन करके वो अकाउंट ग्रुप को वो नंबर जो है ले लेता। सो ये है आपको क्रिएटेड फॉर द कंपनी कोड TM01 परचेज ऑर्गेनाइजेशन TIN1 यहाँ पे क्लियरली दे रहा। तो ये ओके, और कुछ सवाल थे यहाँ पे? ये पार्टनर फंक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी। ये मैं तो समझा ये पार्टनर फंक्शन ऐसा रहता बोले तो फॉर एग्जांपल अगर अपन लोग टाटा कंपनी है ओके, तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक वेंडर MRF सेलेक्ट कर रहे हैं, MRF से अपन लोग परचेज ऑर्डर रेज कर दे रहे हैं। यस, तो पार्टनरिंग फंक्शंस उसके क्या है, इंटरनल कंट्रोल के लिए वो आउटसोर्सिंग दे रहा है उसका बिजनेस, ओके, प्रोक्योरमेंट के लिए किसी को, अकाउंटिंग के लिए किसी को, वही है डिलीवरी के लिए किसी डिलीवरी के को। लिए ऐसी रहेगा क्या ये? वैसे रहेगा सेम पार्टनर फंक्शन वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे ना यहाँ पे। तो ऐसा आपकी कंपनी में कुछ क्रिएट करेगा ऐसे वेंडर्स, तुम बोले ना वेंडर्स में बनाते रहते हो मिलके, तो आप लोग पार्टनर फंक्शन यूज कर रहे हैं? हाँ यूज करते हैं इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि मैं भी एक इंटरनल कंट्रोल में ही आता हूँ क्योंकि आउटसोर्सिंग है ना जेटपैक। ओके ओके, यस यस।
तो ऐसा पार्टनर फंक्शन जो है कुछ कंपनीज में, क्योंकि अब जितने प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा उसके अंदर कहीं भी हम लोग ज्यादा पार्टनर फंक्शन यूज नहीं करें। तो जैसा मैं बोला एमआरएफ का एग्जांपल लिया ना, पार्टनर फंक्शन एमआरएफ का एक ऑर्डरिंग 4 वेंडर्स बनाना पड़ता जब मेरे को, अगर चारों अलग अलग है एमआरएफ के हैदराबाद में 4 ब्रांचा है, एक सप्लाई करता, एक को जो ऑर्डर प्लेस करना पड़ता, एक सप्लाई करता, दूसरा डिलीवरी करता, दूसरे को मेरे को पेमेंट करना पड़ता, पेमेंट करने के ग्रुप अलग है। तो ऐसा अगर 4 चीज़ें हैं तो 4 जगह बनाना पड़ता है मेरे को, 4 बना के पार्टनर फंक्शन में मेंटेन करना पड़ता है। ये जो है 001 ऑर्डरिंग पार्टी है, फलाना 002 जो है इन्हें है ऐसा मेंटेन करना पड़ता। तो दिस इज व्हाट। तो एक वेंडर हम बना दिए और एक दो वेंडर भी बना सकते हैं, 2-3 कितने ही बना सकते हैं, वो कल अपन बना के दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे देखो और रेफरेंस है वेंडर कंपनी कोड, देखो ऑलरेडी हम एक वेंडर बना दिए थे ना अभी यहाँ पे, उसका रेफरेंस हम ले लेके एक बना सकते हैं यहाँ पे वेंडर, हम और एक वेंडर भी बना सकते हैं। वेंडर नंबर ये जो है हमारा 4 ये नंबर बनाना, यहाँ पे मार के कंपनी कोड परचेज ऑर्डर मार के सेम रेफरेंस यूज करके और एक वेंडर भी बना सकते हैं। एमआरएफ का जैसा सीएट है उसके भी सेम डेटा है, खाली एड्रेस वाइज चेंज करना है तो वो क्रिएट करके एड्रेस वाइज चेंज कर ले सकते हैं आप ऐसा। तो कोई अगर सेम टाइप ऑफ वेंडर है उसका डेटा भी सेम रहता तो आप जो है रेफरेंस ले लेके बना सकते हैं। रेफरेंस ले तो क्या होता, जितने भी चीज़ें हमें मेंटेन करा अभी वो बार बार मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉपी कर लेता है एग्जिस्टिंग। ओके राइट, और कोई सवाल जल्दी क्लोज कर लेंगे हम लोग। इंटरनल रहे तो भी अपन को वेंडर बनाना जरूरी होता है, लाइक टाटा स्टील उन लोगों का उसको भी वेंडर बनाना रहता है या ट्रांसफर रिसिप्ट प्लेस कर ले सकते ट्रांसफर पोस्टिंग कर ले सकते हैं एक प्लांट से नहीं, देखो बट इंटरनल कंपनी कोड अलग रहता। नहीं देखो ट्रांसफर पोस्टिंग जो बोले आप सही बोले, ट्रांसफर पोस्टिंग कब कर सकता हूँ मैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या होता है कंपनी कोड से कंपनी कोड को नहीं रहता, मतलब टाटा स्टील से इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं रहता, उसके लिए एसटीओ बनाना पड़ता है उसको, एसटीओ स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, मतलब वो पीओ हो गया ना भाई, पीओ जी। बना लेते हैं वहाँ पे जो है मैं क्या बोलता हूँ, ये जो वो प्लांट है ना जहाँ से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वो प्लांट अलग कंपनी कोड में टाटा स्टील में से है, तो टाटा जी। स्टील वाले को मैं वेंडर के जैसा मेंटेन कर लेता हूँ। ओके ओके वो अपन एसटीओ के जब देख सकते हो कैसा बनाते हैं क्या करते, दैट वी कैन सी ऑन दैट पार्ट। ओके। सर और मैं कुछ? पीपीटी शेयर करिए। ओके मैं शेयर कर दूँ। चार्ट में क्वेश्चन है देखिए अगर Chat box. Let me minimize this. Zoom. MM41 और MM01 में क्या डिफरेंस है बोले भाई? क्या in my company we are using MM41 for creating material. What is the difference between MM41 and MM0? MM0 देखो कैसे टाइप ऑफ मटेरियल को जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। You can create any type of material in MM01. आपको दिख रहा क्या स्क्रीन मेरा? MM01 से जो है आप कौन सा भी मटेरियल जो है क्रिएट कर सकते हैं। MM41 स्पेशली जो है पुराने ECC वर्जन में यूज करते थे इसको। ECC कौन सा वर्जन है आप जो यूज कर रहे हैं? ECC 6 है, EHP 7 जी। ये जो यूज कर रहे हैं आप ही ना जो सवाल करें। जी जी जी। तो MM41 जो है पहले यूज करते थे, अभी मेरे ख्याल से ट्रांजेक्शन नहीं यूज कर रहे हैं। MM41 रिटेल आर्टिकल्स के लिए ज्यादा यूज करते थे। आप रिटेल आर्टिकल्स को बनाते क्या? जी जी, रिटेल स्टोर्स है। हाँ रिटेल स्टोर्स है ना, रिटेल स्टोर्स खाली रिटेल आर्टिकल्स है आपके, तो MM41 ओनली यूज कर सकते हैं। MM01 से क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी बना सकता हूँ मैं, रिटेल आर्टिकल भी बना सकता हूँ, रॉ मटेरियल भी बना सकता हूँ, आप लिक्विड भी ऑर्डर कर सकता हूँ मैं, कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ। तो MM0 इज ए सेंट्रल ट्रांजेक्शन, जैसा आप वेंडर में XK01 है, MM0 एक सेंट्रल ट्रांजेक्शन है जिससे आप हर मटेरियल को भी क्रिएट कर सकते हैं। MM41 इज फॉर स्पेशली रिटेल मटेरियल से, रिटेल ग्रुप में यूज होता है MM41। तो आपका रिटेल ग्रुप है तो यू विल ऑलवेज यूज MM41। ओके, और कोई सवाल? नहीं वो ठीक है। चलो राइट ठीक है। ओके, सलाम। मैं पीपीटी शेयर करता हूँ मैं, और जी। एडमिन साहब हमारा जब भी पॉसिबिलिटी है उन्होंने भी जो है क्या करेंगे आपको क्या करते हैं ये- मटेरियल भी शेयर करेंगे। भाई। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिए ना? ओके नहीं स्टॉप किया। ओके।